Welcome to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. And the news out of Perth right now is that South Africa have defeated India. It was a spectacular win for South Africa. बड़ा low scoring match था, बड़ा फंसा हुआ match था, मगर एक बहुत ही exciting match था. This is what you as a cricketing fan want, is a spectacular game of cricket, and that's what we witnessed. Here's the scorecard on your screens. Match summary आपके सामने आ रही है. Here's the match summary. India batting first. टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. कुछ लोग सोच रहे थे कि ऐसी विकेट पे पहले बैटिंग क्यों की जाए. बहरहाल 133 खिलाड़ियों के नुकसान पर. But Sky, Surya Kumar Yadav, what an innings. This is perhaps one of the best T20 innings that we have witnessed. Rohit, Virat, Rahul, nobody really firing up there today except for it was this one man against the entire South African menacing bowling attack. Look at that figure there from Ngidi and then Parnell and then Nokia. Everybody contributing, bowling really well. In reply, 137 for 5 South Africa. Miller, बेहतरीन इनिंग खेली उन्होंने. मिलर का बड़ा ज़बरदस्त स्कोर रहा है, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे. एंड देन Akram, of course, laying the foundation for that victory. Great effort there. Good bowling by the Indian battery of fast bowlers right up front. They bowled really well. They had the South African batsmen in trouble. But unfortunately, it was in the end the South African middle order that actually delivered this victory. इसके साथ ही जरा पॉइंट्स टेबल में नजर डाल रहे थे. पॉइंट्स पे इस वक्त अब इस ग्रुप के अंदर सूरत हाल ये है कि साउथ अफ्रीका नाउ टेक द लीड एंड गो स्ट्रेट अप विद दैट मैसिव रन रेट ऑफ प्लस 2.77 and 5 points of 3 games. And then India follow them with 4 points and the second highest run rate. Bangladesh also with 4 points in 3 games. Zimbabwe with 3 points in 3 games. Pakistan with 2 points. Netherlands with none. Pakistan, well, the road to the semi-final now becomes very difficult. Mathematically not impossible. Mathematically or technically there are ways that you can see Pakistan move forward, but realistically speaking it's now going to be very, very difficult for Pakistan to move forward. With me in the pavilion I've got the 4 legends, the 4 gentlemen who've served the game of cricket really well, and it's an honor and a privilege to be sharing the studio space with them. I've got the young and dashing Shoaib Malik. I have Mr. Dependable, the wall himself, Misbah ul Haq. Captain, head coach, toe-crushing, batsman terrorizing Waqar Younis. Captain, greatest all-rounder, fantastic human being, Sultan of all Sultans, the king himself, Wasim Akram. Gentlemen, welcome back to the pavilion. A big day of cricket, Wasim. 3 games. 3 games, and we were all kind of engrossed, us and the whole country, कि बाकी मैचेस का रिजल्ट से भी फ़र्क पड़ना था आज. So before we start, I can explain with South Africa winning the match today to be exact, for how Pakistan have extremely low chances to qualify obviously. But for Pakistan to qualify now, India will need to lose against Zimbabwe or Bangladesh, and Pakistan will need to beat South Africa and Bangladesh, and that too by a good margin. By a good margin. खैर ये तो सूरत हाल है. एक चीज़ आज जरूर दें, वकार ने आज सुबह जो प्रेडिक्शन दी थी, सिर्फ वकार ही की प्रेडिक्शन सबसे सही आई. मैं सोच रहा था पहले हम अपनी विक्ट्री को एंजॉय करेंगे. पहली दफा 2 पॉइंट्स इस टूर्नामेंट में अभी तक हमें आए हैं. हाँ, वो तो एंजॉय करनी चाहिए. I think we should celebrate it. It's a good thing. We have finally got points on the table, and it was an exciting game of cricket against Netherlands. Our bowlers were doing really fantastic. But उसके ऊपर हम बात करेंगे वकार बाद में, because we have the packages and everything set up. Sure. And I will bring you back to that game. I know you want to celebrate that, and we will celebrate that. You don't worry about that. Sure. Leave the celebrations to me. You guys have already celebrated. You guys were eating samosas, jalebis. So that was a big celebration. Actually, today we were celebrating cricket. क्योंकि आज हमने दिन का आगाज जो था वो हलवा पूड़ी से किया था वसीम. You did. No, आपने भी, आपको भी मैंने बिठाया था साथ में. ऐसी बात नहीं है. That's true though. और उसके बाद ये कि अभी हमने जो है वो समोसे और जलेबियाँ, and of course not to forget the outstanding halim that we all had. Rather, actually just I had. Yes. He did. Yeah, the whole deg. I had the whole deg, but you were stealing my head. I had 1 spoon. Okay, anyway. We'll talk about that later. We have more important things to talk about, like the ICC Men's T20 World Cup. And let's talk about... Let's start off with that fantastic innings by Surya Kumar Yadav. Misbah, he was just unbelievable today. Amazing inning. Normally आप T20 cricket में बहुत innings आपको देखने को मिलती हैं जो हमें पहले 2-1 मैचेस में मिली हैं न्यूजीलैंड की तरफ से और फिर साउथ अफ्रीका की तरफ से. बट
दिस वाज टोटली डिफरेंट. जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशन थी और जिस किस्म की बॉलिंग हो रही थी. लुक एट द शॉट्स. आई मीन हैवंट सीन एन इनिंग लाइक दैट. बड़े अरसे के बाद ऐसी डोमिनेटिंग इनिंग इस सिचुएशन में खेलना. और इस पिच पे मिस इस पिच पे द वे दे वर बॉलिंग. आई मीन ऐसे लग रहा था, जिस पहला मैच भी हमने देखा, ऐसे लग रहा था जैसे बैट्समैन अपने आप को बचा रहे हैं. बट वो जिस तरीके से डोमिनेट उन्होंने किया है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे लग रहा था जैसे उसको पहले से पता होता था कि ये बॉल होने लगी और मैं कहाँ मारने जा रहा हूँ इसको. सो आई थिंक बड़े अरसे के बाद मुझे लगता है कि ही इज़ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन एट द मोमेंट इन T20 क्रिकेट. 170 के स्ट्राइक रेट पे इस सिचुएशन में ऐसी बॉलिंग के अगेंस्ट इस पिच पे रन्स करना बिल्कुल. शुएब, आई मीन इमेजिन कि कितना प्रेशर है. एक तरफ से आपके जितने सुपरस्टार्स हैं वो सारे के सारे आउट हो गए हैं. सारा प्रेशर आपको अब्जॉर्ब करना है, इनिंग्स को रीबिल्ड करना है. इट्स फैंटास्टिक एफर्ट. इट इज़ फैंटास्टिक. और मुझे लगता है कि उसकी जो सक्सेस इसलिए है और कंसिस्टेंट बेसिस पे है क्योंकि वो अपनी गेम नहीं चेंज करता. स्पेशली आउट भी अगर वो हो जाए 1-2 इनिंग्स में तो वो इज़ वे ऑफ प्लेइंग इज़ द सेम. एक चीज़ वो ज़रूर करता है, कंडीशंस को असेस करता है और जो लगता है कि इस पिच पे ये वाले शॉट्स लगेंगे वो उसको बहुत अच्छे से याद है. उसको अपना गेम प्लान बहुत अच्छे से याद है और वो बॉलर के माइंड के साथ खेलता है. वो बॉलर को देखता है कि अगर मुझे इसने फुल किया तो अगला बॉल ये शॉर्ट करेगा, मुझे अगला बॉल ये आउटसाइड ऑफ स्टंप करेगा या मेरी तरफ करेगा. इसीलिए जो वो शॉट्स खेलता है उसके लिए थोड़ा सा बैट्समैन के दिमाग में होना चाहिए. यहाँ पे मैं AB डिविलियर्स की एग्जांपल दूंगा. वो भी इसी तरह ही बॉलर के दिमाग के साथ खेलता था कि अब अगर इसने मुझे यॉर्कर किया, अब ये मुझे स्लो बाउंसर करेगा, अब ये मुझे आउटसाइड ऑफ स्टंप करेगा. ये हर बैट्समैन नहीं सोचता होगा एट दिस लेवल, इंटरनेशनल लेवल. देखें वसीम भाई, मुझे ये लगता है कि एक तो आपको क्लैरिटी मिलती है मैनेजमेंट से, आपको जो रोल मिलता है. एक ये होता है कि आपने अपना इंडिविजुअल प्लान बनाना होता है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान होता है आपके खुद की सक्सेस के लिए या कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के लिए या टीम के अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए. तो उसके लिए आप अपना प्लान करते हैं और वो उसकी गेम में हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आती है. उसने ये देखें आउट भी हो रहे थे दूसरी साइड से, कभी कभी स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं उसको मिली, लेकिन उसने देखें कि अपना गेम खेला और उसने ऐसे टारगेट पे ले गया था कि जहाँ पे जिस कंडीशन में खेल रहे थे वहाँ पे टफ जो है वो हो सकता था ऑपोजिशन के लिए और वही हमने देखा. मुझे लगता है कि एक चीज़ और कि स्किल लेवल डिफरेंट है. मतलब इतना स्किल आपके पास हो कि आप विदाउट टेकिंग एनी टाइम राइट फ्रॉम द स्टार्ट, सर्कल में तो फिर भी चलें आप इस तरह इम्प्रोवाइज़ करते हैं या आप इस तरीके से शॉटिंग खेल सकते हैं, लेकिन सर्कल के बाद आके इतने आराम से गैप्स ढूंढना और परफेक्टली उनको शॉटों को वहाँ पे टाइम करना, आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच आई हैवंट सीन. वो बहुत टाइम से खेल रहा है इसलिए उसकी इतनी कंसिस्टेंसी है, इसीलिए वो जल्दी असेस कर लेता है. वो काफ़ी सारी फर्स्ट क्लास खेला है, वो काफ़ी सारा IPL खेला है, हमारे काफ़ी सारी डोमेस्टिक IPL में था. मैं बात कर रहा हूँ 2012 या 2013 ऑनवर्ड्स. ही वाज विद KKR फॉर 2-3 years. ही प्लेड ऑन एंड ऑफ. ग्लिम्स दिखाया इसने तब भी नंबर 7 पे आके, जो वो किसने छिक्का 1-2 कराया ऐसे करके, ऐसे नहीं मिडिल से जो मारता वो कराया, तो तब लगा सब लोगों के ये दिस गाय समथिंग. Waqar, do you think it was a good decision for India to win the toss and go in to bat first? Yeah, I think अगर टॉस की सिर्फ बात की जाए तो पिच पे ऐसा था कि शाम को आसान नहीं था बैटिंग करना. वो क्लियरली शोज़ कि अगर साउथ अफ्रीका की भी आप पहले 10 ओवर निकाल लें तो 10 ओवरों में सिर्फ 40 रन थे. इंडिया को प्रोबेबली 10-15 रन और चाहिए थे तो ये गेम बड़ा मुश्किल हो जाना था साउथ अफ्रीका के लिए जीतना, क्योंकि बॉल बाउंस बड़ा अच्छा हो रहा था और अर्ली ऑन नया बॉल स्विंग भी, और वो तो स्विंग भी करते हैं जो इंडियन बॉलर्स हैं. सो आई थॉट इट वाज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन. येस, इट वाज ऑल हैपनिंग. और मैंने पहले भी कहा है कि दे आर द डार्क हॉर्सेस बिकॉज दे हैव गॉट ऑल बेसिस कवर्ड. इनकी जो फास्ट बॉलिंग है ना, दे आर रियली गुड. और आज उन्होंने जिस तरह कर रहे थे, दे वर विकेट्स हर दूसरे ओवर में गिर रही थी. इंडियन प्लेड रियली वेल. दे वर पॉजिटिव. दे वर कमिंग आफ्टर देम, बट दे स्टक टू द टास्क एंड केप्ट ऑन पिकिंग अप विकेट्स. सो साउथ अफ्रीका आई फील इज द वंडरफुल साइड, बट टॉस वाइज आई थिंक वाज अ गुड डिसीजन. मेजर डिफरेंस जो था, इंडियन साइड से एक बंदे ने 68 रन्स की इनिंग्स खेली
और दूसरी तरफ से 2 लोगों ने 50 किया, तो ये जो डिफरेंस था इतने वाले टारगेट में, उसने जो है साउथ अफ्रीका वसीम थोड़ा साउथ अफ्रीकन बॉलिंग देखते हैं, अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे ये जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, इट वाज लुकिंग इम्पॉसिबल टू बैट इन देयर एट वन पॉइंट। इधर चेक करें आप कि किसी से भी नहीं खेला जा रहा था। You know, when we talk about bounce on Aussie pitches, that's what we talk about. So लोगों को शायद पता नहीं लगता, पर्थ की विकेट में सबसे ज़्यादा बाउंस आता है और बॉल पड़ के निकलता है, नीचे नहीं बैठता। ये ब्रिलियंट फील्डिंग टू, दे वर ऑलवेज अ वेरी गुड साइड, बट बैक ऑफ अ लेंथ इसने 4 विकेट लिए। नगीनी ने क्या ज़बरदस्त स्पेल किया है, इसने 4 for 29 in his 4 जी। and you know, fielding South Africans has been always the best, and by the way best bowling averages in T20 this year, number 1 पे है न्यूजीलैंड to 21.16, then number 2 South Africa 21.69, and rightly so with this bowling attack, then Australia, then India, then England. Australia and then India, but okay, that's very good. But again आप देखिए ये पर्नेल था, पर्नेल was also looking, फर्स्ट ओवर था और फर्स्ट ओवर मेडन हुआ था। And it's the length. जी ऑल्सो वसीम भाई, मुझे ये लगता है कि जब आपको पता है कंडीशंस ऐसी हैं, तो आपको थोड़ा सा आना चाहिए बॉलर्स पे, ताकि ये है कि आप एक टोन सेट कर रहे हैं कि यार हमने इस तरह खेलना है, ताकि वो भी थोड़े से बॉलिंग अटैक भी बैकफुट पे जाए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि शोएब आज इस पिच के ऊपर आप किसी तरीके मिसबा यू बीइंग अ बैट्समैन, सूर्य कुमार यादव खेला ना, सूर्य कुमार ही हैज अ डिफरेंट स्किल लेवल ऑल टुगेदर, मार्कम भी खेला है, सो चढ़ के खेले हैं बॉलरों के ऊपर। आपका ये कहना है कि इन पे यहाँ पर किया जा सकता था, दैट यू कुड एक्चुअली टेक द ऑफेंसिव काउंटर अटैक करने की कोशिश की है आफ्टर फर्स्ट ओवर। रोहित शर्मा ने भी की है, राहुल ने भी की है, बट दे जस्ट लॉस्ट विकेट्स। और उसके बाद विराट कोहली भी आए हैं, वो भी पॉजिटिव खेल रहे थे, बट ही गॉट आउट आल्सो। सो मेरे ख्याल में वो इनिशियली जो विकेट्स आपकी जब ऊपर से रहने नहीं हुए, कोई थोड़ी देर भी कोई बैट्समैन एक खेल जाता लंबा सूर्य कुमार यादव के साथ, तो फिर मेरे ख्याल में 150 तक जाने का चांस था उनका। बट ऑब्वियसली बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई और स्पेशली फील्डिंग टॉप क्लास फील्डिंग, टॉप नॉच फील्डिंग। एंड ऑफ कोर्स इंडिया की तरफ कैचेस आज ड्रॉप हुए हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अभी आप वसीम, आपने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टैट हमारे साथ शेयर किया कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दीज आर द टॉप T20 bowling averages in last year, this year, right? Yeah. Where do we have Pakistan on this list anywhere? No, not in top 5. Australia is 23.38 average, India 24.42, and England is 25 runs per average per wicket. So Pakistan is not in top 5. Pakistan is not there in the top 5. Why do you think we are not in there, in the 5? Maybe if any excuse or any, I suppose, reason देनी पड़े, maybe we play a lot more on flat decks. दुबई, शारजा, पाकिस्तान में खेलते हैं, यहाँ ज़रा विकेटें कम मिलती है, बजाय कि अगर आप ऐसी पिचेस पे, साउथ अफ्रीकन पिचेस पे खेलो, मे बी दैट कुड बी द रीज़न। लेकिन वहाँ पे मोस्टली वसीम भाई ज़्यादा 180 वाले मैचेस होते हैं, वहाँ पे तो उनके ज़्यादा एवरेजेस। हमारे सब कॉन्टिनेंट में अगर हमने देखा, लेट्स फॉर एग्जांपल हमने जो एशिया कप खेला, उसमें कोई इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे थे। लेकिन अगर हम ये देखें स्टैट्स, तो जहाँ जहाँ पे इनकी क्रिकेट मोस्टली होती है, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड हमें पता है 200-220 वाले रन होते हैं, तो अगर वहाँ पे भी ये स्टैट्स जो हैं ये हैं उन बॉलर्स के, जैसे न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या इंग्लैंड, तो इसका मतलब है कि कुछ थोड़ी सी मेरा ख्याल है हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। All right, and with that, we need a break right now on the Pavilion. Keep watching A Sports, then Sports. When we come back, there's more to talk about, the games that we've had today. Don't go away, keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. The news out of Perth is that South Africa won the game against India, and what a game it was. All right, let me bring us the way forward. Misbah, what do you think should be the way forward for Ravichandran Ashwin? Because बड़ी ज़बरदस्त आज उन्होंने महंगी बॉलिंग की है और खिंचे गेंद किए हैं जिसमें उनको छक्के पड़े। What should be his way forward? I think सबसे जो गलती उनसे बड़ी हुई है वो यही कि सामने की बाउंड्रीज छोटी हैं, और जैसे ही मिलर ने रूम दिया अपने आप, तो वो बहुत ज़्यादा फुल बॉल किया उन्होंने। बड़ी साइड पे अगर वो कोशिश करते कि उधर को मारें, जैसे अकरम को पहले उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद किया तो कैच भी निकला। आई थिंक दैट वाज फ्रॉम सच एन एक्सपीरियंस बॉलर। इस किस्म की गलती उस टाइम पे जब आपको नज़र आ रहा है कि अब तो
इनके पास चांस यही वो अटैक करेंगे दैट ओवर बेसिकली, बल्कि वहाँ तक तो खैर गेम ऑलमोस्ट ख़त्म थी, बट स्टिल आई थिंक वो ओवर अगर अच्छा हो जाता तो कोई चांस था। वे फॉरवर्ड आई थिंक हर रोज़ तो अब यहाँ पे मैच नहीं है, ऑब्वियसली कंडीशंस डिफरेंट है। जैसे ही अब यहाँ से पर्थ से निकलेगा इंडिया तो ही एन एक्सपीरियंस बॉलर और मुझे लगता है कि बेहतर बॉलिंग करेंगे डिफरेंट वेन्यूज़ पे। Sorry, Wasim, Waqar, you both wanted to interject जब मिसबा वे फॉरवर्ड बता रहे थे। मैंने सिर्फ पूछना ये था कि आर वी डन विद पर्थ और वी स्टिल गॉट मोर गेम्स इन पर्थ? I think we're done. Pakistan is done with Perth, I think. I don't know about the rest of the schedule. Yeah, I think मैं मिसबा से ये पूछना चाह रहा था, अभी वो वाचिंग द गेम टुगेदर, जब वो आया अश्विन करने 18th ओवर करने आया है, सो वी ऑल सेड कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आई थिंक जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उन्होंने भी ये भी सोचा होगा कि मेरे ख्याल में वो रिस्क बनता था। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थिंक उस स्टेज पे, बिकॉज अगर वो सेकंड ओवर सेकंड लास्ट एंड लास्ट कराते तब तक उससे पहले मैच खत्म ही हो जाता। भाई वही सिचुएशन थी जैसे नवाज का ओवर आखिरी हमने रखा था ना, तो वो एंड पे आगे पे अगर आखिरी ओवर में अगर 15-16 भी हो तो स्पिनर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब मिसबा करना कि सामने वाली बाउंड्रीज छोटी हैं। So all you need is हालांकि one odd ball. थिंकिंग एज अ बॉलर उसने कोशिश की है कि मैं पूरा आगे यॉर्कर करूं, बट वो पेस नहीं थी। वो मिलर बीइंग किलर मिलर, उसके वो कहते हैं ना इफ इट्स इन द आर्क इट्स आउट ऑफ द पार्क। और इस तरह की पिच पे ना अब आप देखा ये है कि जो जितने भी बैट्समैन है ना, दे वेट करते हैं कि स्पिनर कब आएगा, यू नो दे वेट फॉर, दे नो कि जी सामने बाउंड्री छोटी हैं तो वी कैन टारगेट देम। इवन इंडिया ने भी किया। और you know it is very very difficult to bowl on this sort of surface as a spinner, or especially to survive to someone like Miller who was very well set. वकार भाई अदर वे राउंड भी जा सकते थे क्योंकि मिलर को आउट करना ज़रूरी था वहाँ पे। अगर फास्ट बॉलर्स के 2 ओवर चांस है ना, आप उस पर भी चांस ले रहे हैं। एक बैट्समैन सेट है, उसका ज़्यादा चांस है कि वो ऐसी पिच पे आपको स्कोर कर सकता है। अगर फास्ट बॉलर ओवर करते हो सकता है वो आउट होते, तो फिर अश्विन के ओवर में भी 10 या 12 रन होते तो बड़े मुश्किल हो जाते क्योंकि पीछे बॉलर्स थे। गुड मैचअप था क्योंकि लेफ्टी खेल रहा था सामने, तो यही सोचा होगा उन्होंने कि यहाँ पे अगर मिलर को आउट कर लेते हैं तो गेम में वापस आ सकते हैं। एक ये वजह थी। दूसरा ये था कि जिस तरफ हम ग्रुप के पॉइंट्स टेबल देखें तो ये कर सकते थे कि 2 और ओवर्स जो है पेसर्स के कराते एज यू सेड, तो वो ये था कि और मैच डीप चले जाता, एवरेज को इतनी मिलर को आउट किए बगैर तो आपके लिए नामुमकिन था ऑलमोस्ट कि आप मैच जीते। Waqar, for your question, आपने पूछा कि Perth are we done with? Yes, we are done with Perth at the ICC. We are now left with the games in Sydney, Melbourne, Adelaide, and 1 game in Brisbane. तो ये सूरत है। बैट्समैन ने सुने तो जड़े सारे जड़ा ना शुक्राने में नफल पड़ रहे। वो भाई पर्थ से इतनी जान छुड़वाने की जरूरत थी सबको। मेरे ख्याल में इट वाज टेस्टिंग टाइम नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानी बैट्समैन। इंग्लैंड खेली है वहाँ पे, आज इंडिया खेली है, टॉप बैटिंग लाइनअप है उनकी, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है सारे। फिर साउथ अफ्रीका वो स्ट्रगल वो इन्हीं पिचेस पे खेलते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल जो हमने देखा है कोई आसान काम नहीं था, मुश्किल। I think it's a very good World Cup. I agree. It's a very good World Cup. You know, there is some fun. Yeah, it's different. Yeah, it's different rather than very just good, seeing bowlers getting smashed for 50 runs in 4 overs. Yeah. 60 Not runs. only that, Wasim, so you see the bowler challenging batsmen, but good batsmen are getting good batsmen, especially today. We must give credit to the South African middle order, Shoaib. They were really fantastic. They're the ones who actually closed this game for South Africa. They were fantastic. और एक चीज़ हम लोगों ने और देखी है कि जहाँ जहाँ ऊपर से जल्दी आउट हो रहे हैं, जैसे ही 10 ओवर्स का ब्रेक आता है उसके बाद जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो रहा है बैटिंग साइड की तरफ। विकेटें लूज भी हो रही हैं लेकिन मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है दूसरी साइड पे। तो आई गेस वो जो ब्रेक है इट्स ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम द मैनेजमेंट एज वेल। थोड़ा गेम प्लान आप समझते हैं क्योंकि एकदम आउट हुए वो, आपने थोड़े से डॉट बॉल्स खेले हुए एज अ बैट्समैन, तो एकदम प्रेशर आ जाता है। तो बीच में इसीलिए थोड़ा सा जो ब्रेक आता है उसमें थोड़ा वो रियलाइज़ करते हैं, थोड़ा प्लान करते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द गेम और फिर अकॉर्डिंगली खेलते हैं। मैंने जो देखा है, जो असेस किया है 10 ओवर्स के बाद जो बैटिंग है वो ज़्यादा मैचेस जीत रहे हैं, ज़्यादा चेज हो रहे हैं स्कोर। तो इसका मुझे ये लग रहा है कि 10 ओवर्स के बाद जो बॉलिंग साइड्स हैं वो या तो फील्ड को खोल देते हैं, इजी सिंगल्स देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाउंड्रीज तो आएंगी जब आपको सिंगल्स मिलेगी। तो मुझे ये लगता है कि जो
10 ओवर्स हैं जो सेकंड हाफ ऑफ द गेम है, उस पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज जो है वो बैटिंग साइड को जा रहा है। ये मिसबा वही याद हो यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि वर्ल्ड कप ओवरऑल ये क्रिकेट वाइज आई थिंक दिस इज द बेस्ट वर्ल्ड कप इन टर्म्स ऑफ दैट। वो इसलिए कि यहाँ पे कंडीशंस का कोई क्लियर कट एडवांटेज किसी को नहीं है। आप हर जगह खेल रहे हैं, होबार्ट में डिफरेंट है, सिडनी में डिफरेंट है, पर्थ में डिफरेंट है, मेलबर्न में डिफरेंट है, अभी आप एडलेड जाएंगे वहाँ डिफरेंट है। तो यहाँ ओवरऑल जो टीम अच्छी होगी, ओवरऑल जो बैट्समैन अच्छा होगा, जो बॉलर अच्छा होगा, जिसके स्किल्स अच्छे होंगे, इन ऑल टाइप ऑफ कंडीशंस वही परफॉर्म करेंगे और वही टीम यहाँ पे जीतेगी। तो आई थिंक उस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट जा रहा है अभी। Great point in there. Thank you very much. With that, we're going to take a break here on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Keep watching here, Sports and Sports. Don't go away. Totally. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhr. You're watching here Sports and Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. In the Pavilion with me, I've got the legends, the icons. I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Waqar, Younis and Wasim Akram. हम लोग अब से कुछ देर पहले एक बात कर रहे थे of the game in Perth, India versus South Africa. A really great game of cricket. South African middle order winning that for the South African side. All round, low scoring, but a great game of cricket. Let's now talk about the Pakistan's victory in this World Cup. The first game that Pakistan has won. Pakistani fans super delighted, super happy to see that victory against Netherlands. Netherlands were ये जरा पहले मैच समझ ले आते हैं. Netherlands batted first, 91. They were all out. Pakistani bowlers were all over them. Great bowling effort by all our boys there today, picking up the wicket. Shadab, of course, shining there with 3 for 22 in his 4 overs. And then Wasim again contributing 2 for 19 in 3 overs. And then Rauf only giving away 10, Haris Rauf, 10 runs in 3 overs. That's just great stuff. And Naseem Shah there with 1 wicket for 11. In response, Rizwan coming to the party with a 49 off 49 deliveries. 39 deliveries, and Fakhr Zaman there, good to see him back in the team, scoring 20 runs, and Shan there, Fakhr there, finishing the game in 13.5 overs, 95 for the loss of 4. So this is how it went down. So congratulations to Pakistani fans, Pakistani cricket lovers. Pakistan won by 6 wickets. Wasim, your thoughts on this game against Netherlands? Win is a win, I suppose. Yep. Yeah, 2 points, two very 2 important points. Win is a win, but it wasn't a convincing win. But credit to, excuse me, all the bowlers, especially fast bowlers. ने ज़बरदस्त bowling की है. मैंने उनका beehive का कहा था, अगर वो निकाला हुआ हमारे प्रोड्यूसर का मैं दिखा दें कि आज उन्होंने पर्थ की पिच पे कैसे bowling किया, उनकी लेंथ क्या थी, बैक ऑफ लेंथ थी, स्टम्प्स में ज़्यादा थी. ये देखें इनका मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने वाइड जो बॉलिंग की है काफ़ी कम की है. आज उनको अटैक पे रखा है नीदरलैंड की टीम को. उनको समझ आई नहीं कि व्हाट हैड हिट हिम. So that's why we got Wasim जब वो कर रहा था यॉर्कर, उसने 2 बोल्ड किए. अनलकी रह गया कि हैट्रिक नहीं हुई, मिस हो गया वो. But that reminded me of good old days of Waqar, Younis and Shoaib Akhtar, all these guys. ऐसे यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर ये लोग करते होते थे. So वो याद आ गई ताज़ा. आगा बाटा माहौल. मैंने शोएब का नाम भी लिया है. शोएब का नाम भी लिया. Which एक और भी है. One more. It was good to see that the boys learned from their mistakes from the previous match. I mean, previous match में शाहीन का जो हम बात कर रहे थे ना पिछले दफ़ा के, जो आगे ज़्यादा बॉल किए. आज भी 1-2 वही जो हम बात करते हैं ना, 1-2 बॉल आगे ट्राई करने के बाद then he pulled his length back and then and tried to ball dot deliveries. I think जब आप pressure create करते हो as a team, as a group, by bowling those dot deliveries, which I thought South Africa also did beautifully. See that the length, they used the pace, used the pitch. They were just high pace and the length was just perfect. Netherlands batsmen had no clue. They were struggling. The bats were coming down very late. The ball was rushing to them. So full marks to the boys who bowled really well. Maybe batting में शायद थोड़ा सा अभी भी है, लेकिन bowling good. Shoaib and Misbah, my question to all three of you: how difficult it would be for the team to actually motivate themselves? Obviously, they want to win the next 2 games they're playing, whoever the opposition is. But I'm realizing what happened in this previous game, India versus South Africa. अब उनके slim chances हैं, तो मुश्किल तो आती होगी टीम को. That's where the management, the skipper has to really
talking to the guys कि doesn't matter, we'll do our bit, बाकी we can't control. Yeah. Yeah, I think so. I think management का रोल आता है यहाँ पे, उनको उठाना पड़ता है लड़कों को. That's their job, and I think I don't think पाकिस्तान को कोई इशू होना चाहिए अगले मैचेस में. The way they play today, I think they will come hard. और दूसरा ये है कि whatever has happened, you can't control the other teams too, or you can't ask the other teams all the time कि जी मुझे push करो, मैं ऊपर चला जाऊँ किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो भी तो बाहर हो सकते हैं ना. So they all playing their best cricket. So I mean ये जो भी उनके results हैं, अगर उस पर हम देखेंगे तो then we should just, हम लोग अपने जो हम खेले हैं, we played poorly before this game. So I think one game at a time. अगले 2 मैच हैं, आप जीतें. Who knows कि India might have a bad day and we might sneak in. इस तरीके से इस पूरे वर्ल्ड कप right from the start अपसेट हो रहे हैं. You have no idea. और बीच में रेन का भी एक फैक्टर है, तो कुछ भी हो सकता है. The most important thing कि आपने अपनी प्राइड के लिए खेलना है. ओके फाइन, हम गंदा खेले, हम 2 मैच हार गए और इस पोजीशन में है, बट स्टिल 2 मैच जीत के एटलीस्ट हमने कुछ ना कुछ तो आगे लेके जाना है ना. सेमीफाइनल में पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, बट फॉर द सेक ऑफ द टीम, कॉन्फिडेंस अपने प्राइड के लिए बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि वो हम अच्छी क्रिकेट खेल के जाएं. So, Misbah, let me ask you this. आपने बोला था कि ये पर्थ वाली पिच जो है ये बाबर की टेम्परामेंट के मुताबिक ये पिच है. But again, unfortunately, Babar got run out today. But what do you think is going on with? Is he under too much pressure of captaining the team in the World Cup? Is it because of any other external pressures, internal pressures, team के combinations के issues? क्या चीज़ है जो उनकी performance को drag down कर रही है? I think काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रीवियसली थोड़ी सी फॉर्म उस तरीके से नहीं है. कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप भी वो एक न्यूजीलैंड में इनिंग हुई है, उससे पहले इंग्लैंड सीरीज़ में भी उस तरीके से इनिंग्स नहीं हुई. वो कंटिन्यूटी नहीं है जिस तरीके से नॉर्मली बाबर करता हुआ आता है. तो ये भी है. फिर टीम की परफॉर्मेंसेज, आप जिस तरीके से 2 मैच आपके ऊपर नीचे हो गए, उसकी वजह से आप अंडर प्रेशर हो गए एज ए टीम. वो भी ऑब्वियसली फिर वर्ल्ड कप है, क्रिटिसिज्म आता है, आप पे प्रेशर आता है. तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो के, और फिर समहाउ ये भी मैं कहूँगा कि कई दफ़ा आपकी ये भी लक, इसको भी मैं लक ही कहता हूँ कि इनिशियली आपको थोड़ी सी कंडीशंस भी ऐसी मिली हैं तीनों मैचेस में जो कि बैटिंग के लिए आसान नहीं थी. तो सारी चीज़ें मिल के थोड़ी कंट्रीब्यूट करती हैं, और सडनली आपको ऐसा लगता है कि जैसे यू आर आउट ऑफ फॉर्म और स्कोर नहीं हो रहा. थोड़ा वे ऑफ प्लेइंग चेंज करना चाहिए था बाबर को वहाँ पे जाके, क्योंकि कंडीशंस डिफरेंट हो गई थी. उसका मकसद ये है कि जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं तो आपके अगर दोनों पैर प्लांटेड हैं तो आप खेल सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं. लेकिन वहाँ पे मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा जो था फ्रंट फुट या बैक फुट को थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए था. ये देखें, जैसे जब एक दफ़ा आप आगे क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेंथ जो है ना, उस बॉल को उसके डील करना उन कंडीशंस में आपका वेट थोड़ा सा पीछे जाना ज़रूरी है, या एक दफ़ा आपका पिछली जो टांग है वो मूव होनी ज़्यादा ज़रूरी है. ये आज खैर रन आउट हुए, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये थोड़ी सी जो उनको एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी. एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी, बिल्कुल. वकार, जो लाइन और लेंथ, आज अभी आप हमारे बॉलर्स की बात कर रहे थे कि बॉलर्स बॉल रियली वेल, वसीम ऑल्सो एडमायरिंग देम. पिछले मैच में अगर ये होती तो विल अ डिफरेंट रिजल्ट, बिकॉज जिम्बाब्वे ने पावर प्ले में बहुत ज़्यादा डैमेज किया था पाकिस्तानी बॉलर्स को. 100%. हमने इस पर बड़ी डिबेट की है पहले भी कि हम लोगों ने पिछले मैच में कहीं ना कहीं थोड़े से रन्स अर्ली ऑन ज़्यादा दे दी. बाद में ऑल्दो कम बैक ज़रूर किया था, 130 पे आउट कर लिया था, विच आई थॉट वाज डेफिनेटली चेजेबल था. लेकिन ये आज जो वो मिस्टेक थी आज नहीं की. आज दे वर spot on. It was a different team. There was also a question. It's just being a devil's advocate. ये भी था कि हमने जो टोटल चेस किया है वो किया है हमने कोई 14th ओवर में जाके 13.5 में we were about 52 for 53. So उससे भी रन रेट थोड़ा बहुत अगर हम कोशिश करते तो ऊपर आ सकता था. ये मैं लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. I don't think पाकिस्तान was thinking at the time कि जी रन रेट का कोई इशू. मुझे लगता है कि 2 मैच हारे हुए हैं, दे वांटेड टू जस्ट विन द गेम फर्स्ट. पहले मैच तो जीतो, वो मैच जीतें, और देन और दूसरी होप ये थी आज के जी अगर इंडिया आज जीत जाता तो थिंग्स
थोड़ी सी शायद No, but then Waqar, that आसानी हो negates it. जाती If है। you're saying that run rate was never on their mind, I don't then think it why would was. this be on their mind कि अच्छा वो उससे जीत जाए, वो उससे जीत जाए और हम ये जीत जाएं? I mean, then I think that would not make any ये difference. है कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो ज़्यादा सोच रहे थे कि जीत जाएं, तो इस अप्रोच के साथ आपको लगता है कि आगे के मैचेस में जाना चाहिए या इस माइंडसेट के साथ कि जहाँ पे you're already struggling qualify for the semi-final, तो इस अप्रोच के साथ मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। अब आप बताएंगे अगर जिस अप्रोच की बात हो रही है, जैसे वसीम भाई ने क्वेश्चन किया, अगर हम इस अप्रोच के साथ आगे पाकिस्तान टीम को देखना चाहते हैं तो आया ये हेल्प करेगी ये अप्रोच या माइंडसेट? मैं तो ऑनेस्टली फील करता हूँ कि जो आप बाकी मैच जब उठा के देखते हैं, जब फिलिप्स को खेलता देखते हैं, जब मिलर्स को, सूर्य कुमार यादव को आज देखा, अगले दिन आपने विराट को देखा, दिस दे डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर व्हेन दे गेट गोइंग। Correct. हमारे रन्स करते हैं, ये नहीं मैं कहता रहते, लेकिन हमारे रन्स जैसे लगता है जैसे स्क्रैची रन्स है। वी नॉट मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गैप है। मे बी आफ्टर द वर्ल्ड कप व्हेन वी डन, ठीक हो सकता है, मे बी वंस वी डन विद दिस, मे बी द क्रिकेट बोर्ड और सेलेक्टर्स और हुएवर दे नीड टू एड्रेस दिस एंड शो दीज गेम्स के दुनिया क्रिकेट में तब्दीली बहुत बड़ी आ गई है, बहुत चेंज आ गई है। हम लोग अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिहाइंड है। मुझे लगता है कि जैसे हॉकी में एक टाइम पे था ना कि जब हॉकी ग्रास से ऑस्ट्रोटर्फ पे गई थी ना जब, तो एकदम बहुत बड़ा फ़र्क दिखा था और हमने फिर उसको बहुत अरसे तक कोशिश नहीं की कि उसको कैच करने की, एंड देन वी आर वे बिहाइंड। आई थिंक वी स्टिल गॉट टाइम, वी जस्ट बिहाइंड। अब लेकिन ये है कि हम अगर इससे लर्न कर लें इस आगे आने वाले वक्तों में कि हमें ये ब्रांड आप नज़र आ रहा है आपको कि ये किस किस्म का ब्रांड क्रिकेट हो रही है और ये आगे और तेज़ हो जाएगी, तो वी हैव टू रियली stay around them if you want to just big big I want to just bring this to you, Misbah. You were one of the most successful test captains for Pakistan. Even in test cricket, we see that other teams score runs much faster than Pakistan. Forget T20. मैं तो टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ. You've got plenty of time in your hands. वहाँ पर भी वो वाली एवरेज हम लोग और स्ट्राइक रेट्स नहीं कर पा रहे. क्या वजह है इसकी? देखिए, बात यह है कि स्किल लेवल आपने जब तक आप कंपेटिटिव क्रिकेट उस तरह की नहीं खेलेंगे, एक्सपोजर उस तरह का आपका नहीं होगा, स्किल लेवल वहाँ नहीं होगा, आप माइंडसेट जितना मर्ज़ी चेंज कर लें, आप उस तरह खेलने की कोशिश करेंगे, खेला नहीं जाएगा। तो आपको माइंडसेट भी चेंज करना है और आपको वो स्किल लेवल भी लेके आना है, वो हासिल करने के लिए जो भी आपने टारगेट रखा हुआ है। अदरवाइज़ होगा क्या, हम जाते तो हैं मारने के लिए, लेकिन वो जाते हैं तो वो ऊपर खड़ी हो जाती है। वो तब जाएगी जब जैसे मिलर है या अकरम है या ये जिस तरह उनका स्किल लेवल भी देखें, वो कितनी क्रिकेट खेले हुए हैं, फिटनेस लेवल हर चीज़ है। आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट देख लें और वहाँ की डोमेस्टिक क्रिकेट देख लें, वहीं से आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे प्लेयर नहीं बनते, ऐसे डेवलपमेंट नहीं होती कि आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट आप डोमेस्टिक क्रिकेट कराते हैं, आप कोचेज़ लगाते हैं और आप एक हफ्ते का कैंप नहीं देते किसी टीम को। ये प्लेयर पूरा साल एंगेज रहते हैं, नीचे से इतना इन पे काम होता है, इतनी क्रिकेट खेल के फिर इस लेवल पे आते हैं। तो हम जब तक वो नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट राइट टाइम पे नहीं करेंगे, हम प्लेयर को ऐसे वहाँ से निकल के कहें तुम एबी डिविलियर्स की तरह खेलना शुरू हो जाओ, पीछे एबी डिविलियर्स पे जो इन्वेस्टमेंट हुई है, उसको जो एक्सपोजर मिला है, जितनी वो क्रिकेट खेला है कंपैरेटिव उस लेवल की, वो जब तक नहीं होगी वो कैसे ट्रांसलेट करेगा अपने आप को, उस परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल लेवल पे। अगर हमें जल्दी कोई चीज़ फिक्स करनी है तो उसका सबसे बेहतर हल मुझे जो लगता है वो ये है कि जब आपकी छोटी टीम्स के अगेंस्ट सीरीज़ हों तो जो आपके बैकअप वाले प्लेयर्स हैं जिनको लगता है कि आने वाले 2-3 साल में ये पाकिस्तान टीम से खेलेंगे, वो टीम उन टीम्स के अगेंस्ट खेलनी चाहिए। जो आपके टॉप के प्लेयर्स हैं उनको हमेशा सिर्फ बड़ी टीम के अगेंस्ट जो है वो खेलना चाहिए। इस तरह आप ग्रूम कर सकते हैं जल्दी। बात ठीक है, ऐसे होना चाहिए। ये तब होता है जब आपको लगे कि हमारी बड़ी टीम के जो बड़े प्लेयर हैं वो ऑलरेडी वो उस लेवल पे हैं जिस लेवल पे दूसरी टीमें। मसला तो ये है कि हमारी जो पूरी टीम खेल रही होती है, वो हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी पहले भी 99 पे आउट हुआ ना, हम वहाँ पे भी फंसे होते हैं, यानी वहाँ पे भी 3-4 पोजीशंस खाली होती है। नहीं तो ये डर वाला सीन फिर आ गया ना बीच में, तो हम आगे कैसे जाएंगे? अगर हम फिर डरते रहेंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे? वो वहाँ पे ऑलरेडी आपके वही प्लेयर खेल रहे होते हैं, यानी आपकी एम्प्टी सीट्स वहाँ 4-5 पहले ही होती हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि ये तो तब आप बात करें ना बैकअप की,
कि जब आपके पास 11 तो बड़े टॉप क्लास हैं, आपको पता है ये एक टीम हमारी ज़बरदस्त तैयार है, फिर पीछे हमने तैयार करनी है, क्वालिटी आपने तैयार करनी है, देन ऑब्वियसली मलिक की बात ठीक है, फिर आप जाएं सेकंड टीम, थर्ड टीम। बताता हूँ, ये 8 टीम्स की हम बात कर रहे थे लास्ट प्रोग्राम में, डिस्कस इज इन लेंथ 10 साल कि हाउ कैन वी इम्प्रूव। सिंस 2010 इंडिया ए हैव प्लेड 52 फर्स्ट क्लास मैचेस, द मोस्ट बाय एनी टीम, 18। ठीक है। और उसमें जब इंडिया सनाए, शराज, विहाड़ी, अग्रवाल, गिल, शॉ, ये सारे 12, 14, 15 मैच खेल के, सराज जब आया है ये 16-18 से मैचेस खेल के इंडिया टीम में आया था। और पाकिस्तान टीम का लास्ट टूर था 1997 टू ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से प्लेयर आपको मिले थे शोएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक, अदर महमूद। और उसके बाद के टूर हैं आपके, लास्ट जो टूर हैं सिंस देन टूर्स आउटसाइड एशिया टू मेजर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया 2009, वेस्ट इंडीज 2010, न्यूजीलैंड 2020, वो जो आप लोगों के साथ गए थे। सो ये सीरियसनेस है हमारी, जो आपके जो बैकअप्स हैं प्लेयर, उनके क्रिकेट ही कोई नहीं, फर्स्ट क्लास ही है, एंड देन स्ट्रेट टू पाकिस्तान। Basically, I think more than the cricket itself, it seems to me more of a organizational management issue more than anything else. ये लड़के तो नहीं टूर ऑर्गेनाइज कर सकते, मैनेजमेंट ही करेगी ना। हाँ, मैं ये कहने लगा था, सॉरी वकार, I'm going to just bring it because this is the thing that I have in my mind. So जब भी पाकिस्तान क्रिकेट का कोई डिबैकल होता है, बुरा वर्ल्ड कप हो जाता है या बुरा टूर्नामेंट हो जाता है, 2 सीरीज गलत हो जाती हैं, हार जाते हैं, तो हम कहते हैं कि कप्तान चेंज कर दो, तो प्लेयर चेंज कर दो, तो कोच चेंज कर दो, यही होता है ना, चेयरमैन को सैक कर दो, कि यही बात होती है। What about all the other elements that are inside the cricket board? Because the cricket board is not limited to these people. क्या वो लोग जो दूसरे ओहदों पे बैठे हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, क्या वो रेगुलरली चेंज होते हैं, या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी एक कंट्रोल है एस्टैब्लिशमेंट का? वो टीम के फेल्योर को तो अपना फेल्योर मानते ही नहीं है ना, वो कहते हैं ये बस प्लेयरों की जिम्मेदारी है। यही तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये आपके सिस्टम की, आपके मैनेजमेंट की फेल्योर है, उनको ये चीज़ें ठीक करेंगे, आप प्रोवाइड करेंगे। तो फिर हो सकता है कि सिस्टम और मैनेजमेंट अगर बार बार फेल हो रहे हैं, तो सिस्टम और मैनेजमेंट को रिप्लेस करने की जरूरत है, मोर देन एनीथिंग एल्स। इसके ऊपर मजीद बातचीत करेंगे राइट हियर ऑन द पेविलियन। कीप वाचिंग स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, विल सी यू ऑन द अदर साइड। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. 3 games today. We've had a great day of cricket. पहला मैच जो था वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बांग्लादेश ने जीता, आखिरी ओवर के अंदर बड़ा थ्रिलिंग मैच था। दूसरा मैच पाकिस्तान का नीदरलैंड्स के खिलाफ, और फिर आखिरी मैच another sensational match that we saw between South Africa and India. With me in the Pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Waqar, Younis and Wasim. Akram, हम ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान की मैनेजमेंट और बोर्ड के हवाले से बात कर रहे थे। वकार, यू वांटेड टू ऐड समथिंग देयर? ये वो बात थोड़ी क्रिकेट बोर्ड की तरफ निकल गई। मैं आई जस्ट वांटेड टू बात हो रही थी कि जी ब्रांड ऑफ क्रिकेट और आगे नेक्स्ट क्या है, यू नो, मे बी वी माइट टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस वर्ल्ड कप के पाकिस्तान कहाँ तक पहुँचता है। बट आई जस्ट वांटेड टू आस्क क्वेश्चन टू शेबीब, क्योंकि ये भी रिसेंटली ये जो भी लीग हुई है, जूनियर लीग हुई है, इसमें यू हैव बीन इन्वॉल्व इन दैट, क्योंकि जब आप अब T20 क्रिकेट ये बच्चे भी तो देख रहे हैं ना कि किस तरफ जा रही है। सो डू वी हैव दैट स्किल लेवल, जो अगर मिसबा जो बात कर रहा है कि जो स्किल भी तो देखना है ना, क्या है उनमें वो चीज़ है कि जो उनको अगर ग्रूम किया जाए या उनको आगे फ्यूचर में देखा जाए तो उनके पास क्या वो है, और अगर है तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं है तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा? देखिए विकी भाई, जो मैं रहा हूँ उनके साथ, मेरे ख्याल में अब अराउंड 15 डेज़ आई वाज विद देम, और जो मैंने असेस किया है और दूसरी टीम्स के भी जो है प्लेयर्स को मैंने देखा है, क्योंकि मैचेस सारे देख रहा था मैं, उसमें मुझे ये लगता है कि गेम अवेयरनेस, उसमें जो चीज़ें हमारे 18-19 साल के बच्चे को समझ है, मुझे ये लगता है कि ये उनको 14 साल 13 साल में ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए, जो मैंने महसूस किया है कि वो 18-19 में जाके वो चीज़ जो है हो रही। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, एटलीस्ट दे गॉट सम एक्सपोजर फ्रॉम द लीग, और ये है कि ये सेम चीज़ अगर उसमें भी लेके आएँ, जैसे 13 अंडर 13 है, अंडर 14 है, और उससे पहले स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट, वो बहुत ज़रूरी है। गेम अवेयरनेस जो है वो
मैंने फील किया है डू वी हैव दैट टैलेंट जो आपने मिलर को देखा, फिलिप्स को देखा, जो बड़े बड़े सूर्या यादव को देखा, डू वी हैव दैट स्किल के जो छक्के मारने वाला या जो बड़ी बाउंड्रीज मारने वाला? देखिए विकी भाई, अगर कंपैरिजन करें ना हम टैलेंट का, सो मे बी वी हैव मोर टैलेंट देन देम, ओके, बट दैट्स अ गुड न्यूज़। या लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होती हैं और वो ना एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम से आते हैं वो प्लेयर्स, इसीलिए ना उनका गैप नहीं आता जब वो डोमेस्टिक वाला जाके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है। तो मुझे ये लगता है कि टैलेंट को जब तक आप अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा प्लेयर्स मिलें। और अब ना टैलेंट पे आपका सर्वाइवल नहीं है, टैलेंट पे आप आउट ऑफ 10 गेम्स आप 2 में कर लेंगे परफॉर्म, लेकिन हमें ऐसा बंदा या ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो अगर 10 गेम्स हैं तो एटलीस्ट 6 में परफॉर्म करे। तो उसी सूरत में हो सकता है कि उनको जो है प्लेटफॉर्म्स और उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं जहाँ पे उनको गेम अवेयरनेस की समझ आए। मुझे ये लगता है कि मैच खेलने से आपको समझ आती है, आपको प्रैक्टिस सेशन से नहीं समझ आएगी। और दूसरा ये है ना, उनको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मैंने फील किया कि दे डोंट नो व्हाट टू ईट और रिकवरी के लिए क्या करना है, आपको किस टाइप का आपको खाना खाना है। तो आई गेस इस तरह के सेशंस भी होने चाहिए कि जिससे वो सीख सके ये तो चीज़ें। पूरे मुल्क को नहीं पता ना, तो बच्चे बेचारे हमारी मुल्क की प्रोडक्ट है ना। वो तो मुल्क नु तो छड्डो ना, ऐसे मुल्क नु की पता है नहीं पता, लेकिन नहीं, बच्चे सीख के all घर I'm से आते हैं ना। all I'm saying is have been identified, तो अब हम उस पे काम कर सकते हैं। all I'm saying is वसीम भाई, you can chip in, कि अगर सपोजिंगली हमारे पास शेबी कह रहा है कि जी हमारे पास ये जो 6 टीमें बनी थी और ये अंडर 19 अंडर प्रोडक्ट आया है, और अगर इसमें से हम देखते हैं कि जो अगर 8-10 लड़के अगर आपको नज़र आते हैं कि दे आर द फ्यूचर, द वे फॉरवर्ड है अगर हमारा T20 का, क्योंकि T20 खेले हैं, तो वाई कांट वी जस्ट टेक देम आउट ऑफ देयर एंड पुट देम इन ट्रेनिंग राइट नाउ, बिकॉज हमारा सबसे बड़ा जो इशू है वो फिटनेस का है। क्योंकि फिटनेस आपकी नहीं है, इस टीम में भी नहीं दिख रही उतनी जो जितनी होनी चाहिए। तो व्हाई डोंट वी जस्ट पिक देम अप एंड जैसे मिसबा कह रहा है कि यार कैंप लगाओ, उनको रगड़ा दो, उनको अभी से ही इतना तैयार करो, उनको प्रोबेबली यू फीड देम व्हाट इज रिक्वायर्ड। सिस्टम बना के आई एम विद यू, देन इफ यू मेक दैट सिस्टम दैट डोंट लिसन टू द बॉयज because they will complain. Of course. When you guys were there as a coach and bowling coach, you were in England for how many 2 months? Yeah. I was with you guys for test matches. वो bubble में थे. Everybody complained. ये training करा रहे हैं. मैं कहता हूँ तुसी छुट्टी ते आए हो सारे. You gotta train. You gotta work. That is even first class में भी शिकायतें लगाते हैं ये लड़के. They are the international guys. Leave them. I mean उनको अभी छोड़ दें. मैं सोच रहा हूँ कि I'm talking about next 3-4 years में जो आपको प्रोडक्ट नीचे से आए. ये फर्स्ट क्लास में भी शिकायतें लास्ट ईयर आती थी, ईयर बिफोर। ये जो PSL में लड़के खेलने आते थे कि जी होते फर्स्ट क्लास की ट्रेनिंग कराई जाते ने, कभी किसी ने कोई अच्छी बात नहीं की कि मैं ये सीखा हूँ या मैं ये सीखा हूँ। नेगेटिव बातें सुनी है। लेकिन वसीम भाई मुझे जो लगता है वो ये है कि जैसे हमारा नीचे सिस्टम में फर्स्ट क्लास है, उसका और इंटरनेशनल को जो अभी भी गैप है वो बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ कम्पिटिटिवनेस, इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस, प्रोफेशनलिज्म, एवरीथिंग। आप बहुत एक बड़ा गैप है, जंप करना पड़ता है आपको। इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही आपको लगता है यार ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी है बंदा, वो हालांकि नीचे उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। वो गैप आपका पहले कैसे कम होता था मैं आपको बता रहा हूँ। मलिक ने भी खेले हैं, मैंने भी, कि जब भी पाकिस्तान टीम को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती थी, सो टॉप परफॉर्मर्स उनकी 1 या 2 टीमें बनी हैं, वो पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट खेलते थे। वो टॉप परफॉर्मर्स पिक हो के उनकी 2 टीमें बन के भी मैचेस होते थे। इस तरीके से आप उनको थोड़ा सा उस लेवल तक लाने की कोशिश करते हैं। राइट, ओनली फ्रॉम द फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप उन परफॉर्मेंसेस पे जब आप लेके आते हैं प्लेयर, वो गैप उस तरीके से फिल इन नहीं होता। फिर बाहर के टूर्स के फिर उनकी परफॉर्म, पहले मैंने भी इतने अरसा ए टीम से परफॉर्मेंसेस किए, फिर उनकी परफॉर्मेंसेस के बाद आपको अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप मिलता था पाकिस्तान टीम में। सो आप उस गैप को काफ़ी हद तक कम कर लेते थे। तो मुझे लगता है कि वो गैप बड़ा पता है क्यों हो गया हुआ है? क्योंकि हम लोग ना एक स्पेल पे लड़के को खिलाते हैं, तो इसलिए हमें वो बहुत बड़ा गैप नज़र आता है। जो आप कह रहे हैं ठीक है, हमारे नीचे की क्रिकेट का और इंटरनेशनल का वो है, लेकिन मुझे ज़्यादा ये लगता है कि जब एक इनिंग्स से या एक स्पेल से आप बंदे को खिलाएंगे तो आपको वैसे ही बहुत बड़ा गैप नज़र आएगा। क्योंकि उनका वो जो अवेयरनेस वाली चीज़ है ना, देखें 2 नए बैट्समैन को बॉलिंग करना और 2 सेट बैट्समैन को बॉलिंग करना डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें। और वो आप तभी सीख सकते हैं जब आपने हर
लेवल पे क्रिकेट खेली होगे, आपने हर सिचुएशन में से गुजरे होंगे, तो आपको रिमाइंडर्स आ जाते हैं ना, यार मैं इस सिचुएशन में फंसा था, मैंने क्या किया था एज अ बॉलर, मैं बैट्समैन एज अ बैट्समैन मैं इस सिचुएशन में फंसा था, मैंने क्या किया था। तो वो प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा याद आ जाता है। जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं जैसे विराट है या सूर्य कुमार यादव है, तो उनका प्रोसेस है, वो प्रोसेस से गुजरते रहे हैं, तो उनको अपनी समझ आ गई, अपनी गेम की समझ आ गई कि यार ऐसे कंडीशन आई थिंक यू हैव अ पॉइंट, प्रोसेस होनी बड़ी ज़रूरी है। मिसबा हैज़ बीन पॉइंटिंग आउट कि प्रोसेस मिसिंग है, प्रोसेस होनी चाहिए सही वाली, प्रोसेस का उधर भी यही इशू है। वकार भी यही कह रहे हैं कि प्रोसेस के अंदर जो है वो स्पेस है, उसमें अभी से उन बच्चों को निकाल के ला के उनको एक ऐसी प्रोसेस में डाल दिया जाए जो कि ये नॉर्मल वाली प्रोसेस तो कामयाब नहीं है ना, नाकाम चल रही है ना मुसलसल, उसका जो बाय प्रोडक्ट निकल के आपकी टीम में आ रहा है वो सही नहीं है। क्योंकि मे बी एट अंडर 19 में मेरा जो सब इधर उधर बात चली गई, क्योंकि मैं बेसिकली ये कह रहा था कि अंडर 19 में बच्चे जो हैं वो प्रॉबली उनको अभी उतनी वो नहीं है जो स्टारडिज्म होती है ना, वो उतना नहीं होता है। सो मे बी पिक देम अप फ्रॉम देयर and train them and just purely train dietitians, जो भी उनको चाहिए, रिहैब चाहिए, उनको उसमें डाल के उनको तैयार किया जाए ताकि एक मॉडल्स पहले निकले ना। नेशनल क्रिकेट एकेडमी का इसमें क्या रोल है वसीम? ये जो चीज़ें कह रहे हैं कि वो होना चाहिए, डाइट होनी चाहिए, सेंटर आई थिंक इट्स कॉल्ड नाउ। हाँ, उसका हाई परफॉर्मेंस सेंटर में I क्या होता है? don't know. I hardly been there. I think these guys can tell you more than वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे यही सब कुछ होना चाहिए। वकार भाई का क्वेश्चन है ना, वो बहुत अच्छा है कि अगर if you have identified some players Models and तैयार करें, models and तैयार you know करें। they have talent and they'll be groomed, Yeah. अगर हम उनको right platform दें या right guidance दें, उसमें ये होता है कि जब मलिक वो 100 प्लेयर्स का हो तो रहा है वहाँ पे एंग्रो के साथ, जो भी वो एक अभी शुरू किया है उन्होंने कोचिंग का, कुछ एक नई चीज शुरू की है। सिर्फ हमारा हम पीछे But here's my question. Sorry, I'm going to just stop you, Malik. So hold your thought there. आप इधर से कंटिन्यू करेंगे। You just pointed out कि एंग्रो के साथ मिलके जी वो ये कर रहे हैं, कोचिंग वाला हुआ है। Why does PCB have to wait for somebody like Engro to come along and then to bring out a program like that? Why should $1 million PCB question. not doing this on their own? Don't they have the money? Of course they have the money, right? So why are they not doing it on their own? आई डोंट नो, बट आई थिंक जो भी कर रहे हैं, जिसके साथ भी कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर मैं कहूँगा ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। 16 साल के बच्चे हैं, वो कितना टाइम लगेगा? 5 साल, 6 साल, 7 साल। अभी हम 6-7 साल में हमने जो वर्ल्ड कप्स खेलने हैं उनमें हम क्या करेंगे? जो हमने टेस्ट सीरीज़ें खेलनी हैं उनमें क्या करेंगे? अभी के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है? हमने तो अभी 7-8 साल मनसूबा तो बना लिया है। फ़ौरन हम क्या करेंगे? इस वर्ल्ड कप के बाद फ़ौरन नेक्स्ट ईयर आपका वनडे का वर्ल्ड कप है। I think Misbah, the first thing that we should all be talking about and thinking about doing is getting some kind of permanence in the system, because there is too much ad hocism going on all around. यही मैं कहना चाह रहा था और मेरा यही क्वेश्चन था कि जब आपने, जैसे वकार भाई ने कहा, 10-11 प्लेयर्स जो हैं आपने PJL से जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, आपको पता है कि दे कैन प्ले फॉर पाकिस्तान, तो हमें उनको ग्रूम करना है। जो ट्रेन है वो ट्रैक पे चढ़ जाती है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आने वाला होता है तो लोग काफी सारे चेंज होते हैं, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो आइडेंटिफाई किए हुए थे लोग वो गायब हो जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, फिर आप उनपे 2-3 साल लगाते हैं, वो भी गायब हो जाते हैं। तो इसलिए क्लैरिटी जो है ना वो चेयरमैन को भी होनी चाहिए, ठीक है, जो वो अपनी टीम लेके आते हैं उस पर भी होनी चाहिए, जिसको आप कैप्टन बनाते हैं उसके पास भी, जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं किसी टीम के लिए भी, उसके पास भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, फिर रिजल्ट्स जो है बेहतर हो सकते हैं। स्टेबिलिटी की बड़ी जरूरत है, कंसिस्टेंसी की बड़ी जरूरत है। लेकिन दुनिया में फखर बात यह है कि वो अंडर 19 से लड़का आता है तो उस वक्त ही आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये अब इतने साल बाद इस साल में ये कप्तान होगा साउथ अफ्रीका का या इंग्लैंड का, और वो वहाँ से उसको ट्रैक करते हैं और वो जो टाइम है उस पर वो पूरा उसका पूरा एक रोड मैप पूरा बनाते हैं कि जी इसको कैसे पूरी प्लानिंग उसकी करते हैं, कैसे कैसे ये जाएगा, क्या क्या खेलेगा। अब हम ये जो अंडर 16 है या अंडर 19, ये हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ली, मे बी इसका पीरियड हो 6 साल। ये जो भी आइडेंटिफाई किए हैं इनके नाम होने चाहिए बाकायदा, हर जगह हर किसी के पास होना चाहिए कि ये बंदे, इनको हमने कैसे ग्रूम करना है। एंड देन आपका शॉर्ट टर्म, अभी नेक्स्ट वर्ल्ड कप है आपका, अगला T20 वर्ल्ड कप है, टेस्ट मैचेस हैं, विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स शॉर्ट टर्म में कौन से लोग हैं, कौन से वो परफॉर्मर हैं आपके जो अभी हम ले के, जिनको हम थोड़ा सा उन पे काम करके, उनको थोड़ा एक्सपोजर दे के, उन पे जो भी ट्रेनिंग करनी है, उनकी
टेक्निक पे काम करके फ़ौरन हमें कहाँ कहाँ चाहिए और कहाँ हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो साइड बाय साइड उसका अलग काम होना कुछ चाहिए। देर तो कड़वा घूंट आपको भरना पड़ता है, कुछ देर आपको ऐसा होता है कि जब आप एक नए बच्चे तैयार कर रहे होते हैं, नई टीम बनाने के चक्कर में होते हैं, नीचे से ग्रूम कर रहे होते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं कोई साल, 1.5 साल, 2 साल मार झेलनी पड़ती है। वो आपको मीडिया को भी फेस करना पड़ता है, वो आपको सेटबैक्स भी आते हैं उसमें। सो एज अ चेयरमैन या एज अ लीडर यू हैव टू बी एबल टू ऑब्जर्व दैट and keep backing that policy you make. लेकिन That's what I feel. बात यह है कि जब आपका प्लेयर एक स्किल सीख के आता है और वो सारा कुछ, और फिर उसको जो आप टाइम देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं फॉर परफॉर्मेंस, उतने अरसे में अगर परफॉर्मेंस नहीं आती तो देन फाइन। लेकिन अगर आप बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा प्लेयर अंदर डाल रहे हैं कि ये अब टीम में ही सीखेगा सब कुछ, जो अभी हो रहा है, जिसकी वजह से फिर सफर वो प्लेयर भी पीछे जाता है। नीचे से पिक करो, गाइड हिम एंड देन ब्रिंग हिम। अगेन नोबडी गेव मी एन आंसर। आई वांटेड टू नो कि वो जो पाकिस्तान की जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ पे फिर क्या होता है? उधर कौन लोग हैं, किनको वहाँ पर तैयार किया जा रहा है, किन पे इन्वेस्ट किया जा रहा है? सीधा सा जवाब है कि आपको मैंने पहले भी बताया कि जब हम एक हफ्ते का कैंप नहीं देते 6 टीमों का अपनी फर्स्ट क्लास, दैट इज़ द सीरियसनेस। और हर जगह यही होता है कि हम वो पैसे, हमें लगता है कि पैसे ज़ाया हो रहे हैं, ये हम कैंप के पैसे बचा लें, तो फिर आप जो भी करता है। बहरहाल ऐसे ही आपके डोमेस्टिक में आप कोचेस से पूछ लें, जब मैं भी था कोच तो मेरी जो बात होती थी, वो काम करना चाहते थे, वो खुद बुलाते थे लड़कों को, खुद अरेंज करके कैंप्स करते थे, तो उस पर भी इतराज़ होता था कि नहीं जी ये कैंप नहीं है, क्यों कर रहे हैं। देखिए रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी, एक मिनट, डिड यू जस्ट से कि उस पे भी जब खुद कोई कोच इनिशिएशन लेता था, तो उस पे भी क्रिकेट बोर्ड ये कहता था कि ये गलत है, नहीं करें आप। बहुत बड़े कांटे। अच्छा, रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी, पीसीबी ने प्लान बनाया था 5 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर 2019 पे। वसीम खान थे सीईओ, शायद चेयरमैन मानी साहब थे। अब जब वो चेयरमैन बदले तो वो प्लान इज गॉन, डिसअपीयर्ड। सो माय रिक्वेस्ट टू हूएवर इज द चेयरमैन नाउ, रमीज इज द चेयरमैन, एंड जो उनके बाद भी जब भी आएंगे, जस्ट अगर रमीज को अच्छे काम करके जा रहा है, अगर कोई अच्छी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके जा रहा है, जस्ट फॉलो इट। डोंट कम के आती का तो बंद कर दो, मेरे नाम से शुरू कर दो। यू नो, ये चीजें हमें खत्म करनी पड़ेंगी। वी हैव टू बी सिंसियर। वसीम भाई, उस दिन जब मैं कह रहा था कि मुदस्सर नजर की एक स्टोरी है मेरे पास, दैट वाज द सेम ऑन दिस इशू। Okay. Mudipa, great man, great worker, really worked really hard in the academy. He was a director there at the academy, and he worked really hard. He produced a lot of good cricketers at the time. लेकिन वो भी रो के गए हैं कि because he had to pick up the files and go to the cricket board, और वो पड़ी रहती थी, वो उसका मंजूर नहीं होते थे, कैंप्स नहीं मंजूर होते थे, बजट्स नहीं करना है, just go straight to the, उनका तो 4 चेयरमैन होना चाहिए। Wasim bhai, you are very close to Mudipa. I am. And you ask him this question. Why he left? He literally left here crying. That I've given everything to this. नहीं है, कैंप के पैसे नहीं है, so these are the issues. मुडिपा को ये चीजें। तो क्या उसकी वजह क्या है कि हमारे बोर्ड के पास पैसे नहीं है? गुर्बत है बोर्ड के अंदर। माइंडसेट, सम पीपल इन द बोर्ड फॉर लास्ट 25 इयर्स। अगर बोर्ड के पास पैसे नहीं है, देखिए मैं इस तरह बिल्कुल भी उस तरफ डिस्कशन नहीं ले जाना चाहता कि किसकी कितनी तनख्वाह है और किसको कितना टीएडीए मिलता है और किसको कितने वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता है मैनेजमेंट का बंदा, या होटल के लिए उसको कितने पैसे मिलते हैं। लेकिन हियर्स द थिंग, the reason why a cricket board is there is because of the sport of cricket, because of the players of the sport. And if we can't spend money on this, then we should not spend money on anything whatsoever. Simple as that. It's business, basic business rule, management rule, corporate rule. एक कोर बिजनेस है, अगर आप उस कोर बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे और उसी बिजनेस को सही नहीं चला रहे, तो बाकी फिर कोई भी चीज़ जो है उसकी जस्टिफिकेशन नहीं बनती। एंड ऑन दैट नोट, there's one thing that's always justified, and that's a good break on the Pavilion. See you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने सितारों के साथ, अपने लेजेंड्स के साथ, the icons of the game of cricket, शोएब मलिक, मिसबाह उल हक, वकार, यूनिस, वसीम, अकरम के साथ बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान के क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से, इसके माजी के हवाले से और इसके हाल के हवाले से।
और बहुत सारे सवालात जो हैं वो ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ आज द पवेलियन पे आना शुरू हो गए हैं। अभी ब्रेक में मैं ट्विटर चेक कर रहा था, ये आप हैशटैग देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे अब आपको नजर आएगा आस्क द पवेलियन, हैशटैग आस्क द पवेलियन। इस पे आप अपने जो है सवालात लिख कर भेजना शुरू कर दीजिए। ये हैशटैग आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, और हम अब से कुछ देर बाद आपके सवालात जो हैं वो लेना शुरू कर देंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं वैसे आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो, शोएब आपके पास कोई इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट है, पाकिस्तान टीम का कॉन्ट्रैक्ट है, पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई फर्स्ट क्लास का कॉन्ट्रैक्ट है, पाकिस्तान नेशनल टीम का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट वहाब का कोई कॉन्ट्रैक्ट? आमिर, इसीलिए तो बैठे हुए हैं टीवी। ओके, हाँ, सो आई जस्ट हफीज भी नहीं है, हफीज का भी नहीं। हमारा सिर्फ तब होता है अगर जैसे मैं टूर बाय या हफीज है, ये लोग हम लोग सिर्फ T20s खेलते हैं। तो अगर हम डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो सेम रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होती हैं हम पे भी। वो टाइम पीरियड के लिए अगर इस टाइम से इस टाइम पे वो टूर्नामेंट चलेगा तो हम पे भी वो सेम रूल। तो उस टाइम के बाहर अगर कोई बैन अल-अक़वामी टूर्नामेंट हो, बाहर की कोई लीग हो तो आप आराम से खेल सकते हैं? जी जी बिल्कुल खेल सकते हैं। So you can just go, you don't need to ask Pakistan Cricket Board, you can get on a No, we plane. still have to take the NOC because आपको अगर Why आप do you have to take an रिटायर्ड NOC? प्लेयर हैं और आपको 2 साल का बीच में गैप आ गया है, फिर आपको NOC नहीं चाहिए। बट ये लॉ वरना- बनाया किसने था? ये आई गेस ICC का लॉ है। ये जो है आपको 2 साल अगर आप नहीं, एनओसी retire वाला कि आपको अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है और एनओसी लेनी है, ये किसका आइडिया है? नहीं, ये ICC का ही है, लेकिन उसमें ये है कि बोर्ड आपका जो है ना वो फिर अपनी आगे से पॉलिसीज बनाता है कि अगर ये हमारे जैसे ICC वाइट बॉल क्रिकेट है। आईसीसी का लॉ ये है कि आपने एनओसी आपको चाहिए, उन्होंने जब लॉ नहीं कि ICL नहीं देना। जब ICL आया था तब मेरे ख्याल में ये काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट हुए थे। तो आपको मिल जाती है एनओसी आराम से? हाँ, थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है। मतलब it doesn't happen कि you called whoever the guy is. डायरेक्टर ऑपरेशन, No, Director, it's to be honest, Assalamu alaikum, I have nothing against the PCB, but honestly बड़ा रगड़ा लगाते हैं NOC के चक्कर। भाग दौड़ से आपके क्या मुराद है? भाग दौड़ से ये है कि मेरे पास इस वक्त 6 पेपर सामने पड़े हैं, अगर एक लाइन भी मिस हो जाए तो वो भी प्रोवाइड करेंगे तो NOC मिलेगा, वरना जो है ना, और वो भी आप 3-4 लोगों से बात करनी पड़ती direct, or you have to go to different people? No, to different people, वसीम भाई। For one NOC. जी, for one Why NOC। can it not be just an email? हाँ. Here's it. I want to go play this particular league. I need an NOC. Last time Please send me an it NOC. was very tough for me to make them understand कि मैं एक ही फॉर्मेट खेलता हूँ T20 डोमेस्टिक का, और वो नहीं है अब। तो मैं मुझे नहीं पता मेरा कौन कोच है डोमेस्टिक का। पहले आपको डोमेस्टिक वाले कोच से NOC लेनी है, फिर PCB से लेनी है। ठीक है, अच्छी चीज़ है, ये क्लैरिटी आ जाती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं खेलने तो वो आपकी वो रिप्लेसमेंट ले लें। लेकिन अगर कुछ प्लेयर्स जो हैं वो खेलते ही नहीं, जैसे 4 डे क्रिकेट है या 1 डे क्रिकेट है, तो उसमें मेरे ख्याल में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, डिफरेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ये जो सारे प्लेयर्स हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, ये ज़रा कंसिस्टेंसी के हवाले से है कि PCB, ये आपने जो एक चीज़ बताई थी, अभी ये पता चला है कि कोई एक प्लान था, बहुत सारे कोचेज़ हायर किए गए थे, और वो बहुत सारे कोचेज़ जो हैं वो हैं, उनके ऊपर बड़े सारे पैसे लगाए जाते हैं। वो ये क्या सिलसिला है? कोचिंग सिस्टम 22 साल पहले शुरू हुआ था, राइट, और 95 कोचेज हैं PCB के पेरोल पे, एंड PCB pays about 50 crores a month, a year. In fact, month will be too much. Yeah. A year. ये So I think generally I don't want to be the guy who बिल्ली के गले में घंटी बांधे. So but yeah, that's what it is. I don't want to say any more on this. सो इनको जो 50 करोड़ रुपए साल के दे रहे हैं इन 95 कोचेस को, मिसबा आप भी करते रहे डोमेस्टिक कोचिंग? नहीं, आपने की, बट बिकॉज यू वर बोथ कोचेस फॉर द पाकिस्तान Usually टीम। coaches के contract होते हैं. So contract साल के, 2 what is साल the के performance base. What is the KPI for these coaches? What is the key performance indicator for these coaches? Misbah was very much involved with the coaches also. He probably knows a bit more. क्या than- KPIs क्या होते हैं मिसबा इनके? आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं बेसिकली नहीं, अगर आपकी रेगुलर जॉब है, हाई then परफॉर्मेंस सेंटर। आपको एक जगह से रेगुलर जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनके। अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और चेंज भी होते हैं कोचेस आपकी एवेल्यूएशन की बेसिस पे। ऑब्वियसली उसमें सारा कुछ दोबारा से इंटरव्यूज़ भी करते हैं, और फिर रिस्पांस फ्रॉम द प्लेयर्स भी होता है, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंसेस होती हैं वो भी सारी चीज़ें देखते हैं। तो आई थिंक सिस्टम तो है, लेकिन मेरा पॉइंट वही है कि आप ड्यूरिंग द सीज़न, कोचेस बिल्कुल ठीक कहते हैं इस हवाले से, कोचेस बिल्कुल ठीक हैं कि आप जब आप कंपटीशन में हैं तो बेसिकली आप सिर्फ थोड़ी बहुत
एक स्ट्रेटजिकल कोई ना कोई मूव्स कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ऐसे खेलना है हमने। आप उन पे ओवरऑल उनकी टेक्निक पे, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे उस तरीके से काम नहीं कर सकते, ना ही कोई ट्रेनिंग के हवाले से, फिटनेस के हवाले से भी ज़्यादा आप उनको ड्यूरिंग द सीज़न पुश नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये जो इतने कोचेज़ हम रखते हैं या सारा कोच, उसके साथ हमें उनको ऑफ सीज़न में यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर देखो ना, आप बहुत जैसे मुश्किल। आपका जो पाकिस्तान का कोच है वो सकलैन है, इंटरम कोच था अपेरेंटली, साल हो गया उसे। यूसुफ इज़ द बैटिंग कोच एंड सकलैन इज़ आल्सो द हेड कोच ऑफ अपना जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, और यूसुफ भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर का मेन कोच है। दे आर नॉट देयर, सो नोबडी इज देयर टू हेड दैट। या Are you serious? या That doesn't make sense. That makes no sense. that's what it That's is. a total shocker. Yeah, there's no head coach in batting एडहॉक bowling. पे काम है ना, वो आए थे थोड़ी नहीं देर तो के एडहॉक लिए। पे भी तो कोई होगा वहाँ पर। नहीं, उसके बाद उन्होंने रिप्लेस नहीं, वो टीम के साथ है तो मेरे ख्याल में पीछे है अभी तक कोई Okay, coach। this is really, this is चीज़ें बेहतर हो bizarre. सकती हैं पैसे अगर बचा लो। नहीं पैसे सर, पैसे ये जो हाई 50 करोड़ रुपए आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं 95 मैनेजर कोई आ जाए, हाँ, वो- एक्स क्रिकेटर, तो उससे चीज़ें हाई परफॉर्मेंस में जो लाहौर में उससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। So I don't know what the budget is of the high performance center. I know that उस बिल्डिंग पे बड़े पैसे इन्वेस्ट किए गए थे। I know कि PSL का ड्राफ्ट वहाँ पे होता है। I know कि वहाँ पे और भी बड़े जो है वो इवेंट्स हो जाते हैं। I know कि उधर अंदर गाड़ी ले जाना भी जो है वो प्लेयर्स के लिए अजाब होता है, ख़ासतौर पे वो बड़ी सुना है बड़ी सख्ती होती है वहाँ पे सिक्योरिटी की, चूँकि मुझे भी बड़ी दफ़ा उन्होंने रोका हुआ है कि जी, हालांकि मैं होस्ट करने जा रहा था PSL का ड्राफ्ट, तो उन्होंने बड़ी सख्ती की हुई थी वहाँ नहीं, पे, which is fine. उस दिन खाना कम था एकेडमी उस दिन खाना कम था, सही है। 50 करोड़ रुपीस फॉर 95 कोचेज, ये आपने बताया ना 95 कोचेज हैं जो साल को 50 करोड़ रुपए उनको हम साल का दे रहे हैं। ये 4,38,596 रुपए बनते हैं पर कोच पर मंथ। Wow. ठीक है, here's the ये question. आई थिंक ये 95 मतलब कि ये सारी 6 टीमों के साथ नहीं है, ये they go all around the country. system में। They go in the I they agree go with, to but the average- districts, all the average districts and all 50 that. करोड़ को जब आप 95 पे साल पे डिवाइड करते हैं तो 4,38,000 रुपए की तनख्वाह बनती है महीने की इन कोचेस की। तो इनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, यकीनी तौर पे उसके अंदर कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे कि दीज आर योर KPIs, आई वांट यू टू डू दिस। ये जब चेक हो जाएंगे बॉक्सेस तो आपकी तनख्वाह मिलेगी और आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे चलेगा, वरना नहीं चलेगा। बड़ी सिंपल बेसिक मैनेजमेंट 101 है। And you're a management student yourself, Misbah, so you should be able to explain this to me. देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसी तरह ही है, ये कोई ये नहीं है कि परमानेंट जॉब्स हैं इनकी। हर साल हर उसके बाद सीज़न के बाद इनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होती है, और लास्ट टाइम ब्रेड करके गया था और उसके बाद रिन्यू हुए इनके दोबारा से। सिस्टम है इनका एकेडमी का अपना, Right. तो ये उसको देखते हैं क्या हो रहा है, किस तरह प्लेयर्स की डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं, ये ओवरऑल जो चीज़ें इनको कहीं थी उसको इन्होंने कहाँ तक पूरा किया है। तो आई थिंक सिस्टम है, बट उसको और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। फेयर इनफ। 50 करोड़ रुपए ये जो भी फिगर हमें आपने दी, उसके अंदर अभी तक है कि वी नीड टू स्टिल कंफर्म दैट फ्रॉम द PCB इफ दिस इज nice एग्जैक्टली द if they एक्यूरेट। confirm us, yeah. इट इज बेटर कि अगर PCB इस पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे सके 2-3 चीज़ों के ऊपर। एक तो ये कि कितने कोचेज हैं इस वक्त, उनकी मंथली सैलरी क्या है, इन कोचेज का प्रोग्राम क्या है, उनके KPIs क्या हैं, और ये जो हमारा नेशनल परफॉर्मेंस सेंटर है, जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, उसमें जो हेड कोच मिसिंग है इस वक्त या कोचेज जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो क्यों नहीं है और उनकी जगह किसने ली है, और वहाँ पर कौन से प्रोग्राम्स इस वक्त चल रहे हैं, कौन से खिलाड़ी हैं, उनकी लिस्ट आनी चाहिए हमारे पास जिनका हमें पता चले कि वो अंडर डेवलपमेंट हैं, कौन से फास्ट बॉलर हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है, बैट्समैन हैं जिनकी पावर हिटिंग को इंप्रूव किया जा रहा है, फील्डर्स जिनकी फील्डिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स के ऊपर काम किया जा रहा है। ये कौन से बच्चे हैं, ये कौन से पोटेंशियल है हमारे मुस्तकबिल का क्रिकेट का, जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। I think one should not be that much worried about कि जी उसको कितने पैसे मिल रहे हैं या वो कितना Right, but उसका हो क्या रहा है? But the most important bit is कि प्रोग्रामिंग क्या है। That's अगर what I'm saying. प्रोग्रामिंग आपको पता चलेगी ना कि अच्छा ये वर्क हो रहा है, तो then it's fine I guess. हाँ, अच्छा हमने तो तनख्वाह की बात की ना, लेट्स सपोज जो भी है तनख्वाह इररिलेवेंट, कोचेस को क्या फैसिलिटेशन दी जा रही Yeah, है, all of क्या that. उनको बोला जा रहा है यार ये ले 12 कोकाबोरा की बॉलें हर हफ्ते हम आपको दे रहे हैं, आप नेट्स में लगाएं अपने लोकल उसके अंदर, ये आपके पास ये लीजिए, आपको क्रिकेट के बैट्स नहीं दे रहे हैं ताकि बच्चों को जरा It can't be that easy. It's- बोले अपनी हाँ? बोले अपनी बॉलें अपनी, मतलब? बॉलें अपनी, बल्ला अपना, पिच अपनी, नेट अपना, लड़के अपने, फिर अपना ही है सब कुछ सारे का सारा। It's not that big deal to get one of the Sialkot is one of the
most biggest cities in the world, they produce the best cricketing balls. Sports equipment. तुम Yeah. वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर लो किसी कंपनी से कि भी हमें साल के इतने बॉल बना के दे दिया करो प्रैक्टिस के लिए। वो मिलते हैं नॉर्मल जो बॉल्स हैं ये ग्रेस के या ये मिलते हैं आपको प्रॉब्लम सिर्फ कोकाबोरा के बॉल्स की होती है जब आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं और जब प्रैक्टिस करोगे आप देसी बॉलों से तो ऑब्वियसली फर्क तो पड़ेगा ना। So clear. So that's what I mean. So I really hope कि हमारे जितने भी दोस्त हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो अगर वो प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा तो आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप ये चीज़ें क्लैरिफाई कर सकें, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमसे रब्ता करते रहते हैं अक्सर वक्तन फ़वक्तन कुछ चीज़ों के बारे में। तो अगर आप इसके ऊपर जो भी मैंने सवाल आपसे सारे किए यूट्यूब पे भी होंगे, so you could listen to these questions and if you could send us a little bit of detail on exactly what's going on at the National High Performance Center, what's going on with the coaches, what is the coaches program, their KPIs and so forth, जो मैंने भी सारी बातें की हैं. And I think we should, you know, we are worried about Pakistan's cricketing future, and rightly so, because we have a performance where we are all a little disappointed, but we are, you know, really looking forward that in the future, inshallah, we'll be able to produce champions, and that is what we have. चलें जनाब, चलते हैं पहले मैच की तरफ आज जो हुआ था, और ये मैच जो था जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का था, ये भी बड़ा सनसनीखेज मैच हुआ है, जबरदस्त मैच हुआ है, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है वसीम, और आखिर तक जो है ये मैच जो है वो चला है। मैच समरी आपके सामने ले आते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर इसको देख लीजिए। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 150 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर, एंड देन शंतु देयर कमिंग विद दैट ब्रिलियंट इनिंग्स ऑफ 71, Afif also contributing, Shakib also contributing, Litton Das 12, 14. Good bowling, decent bowling, especially by Muzar Rabbani. 2 विकेट लिए उन्होंने 13 रन देके 2 विकेटों के अंदर, but 2 overs के अंदर, sorry, my apologies. Zimbabwe responding, coming in very, very close, within striking distance for a victory. आखिरी बॉल तक ये मैच गया था. Great winnings by Williams right there on top. Or of course a good effort. Heroics by Tashkent today. Bangladesh winning this by 3 runs. A very close call, touch and go. पहला मैच था ये आज का, and Pakistan wanted कि बांग्लादेश जो है जीते. So the good start for the day, Wasim. Yeah, it was. It was a good game. I suppose they scored 150. Shanto got 71. Couple of them, Shakib got 23. Afif got 29. So 150 Perth में match था, if I'm not wrong. So Gabba. नहीं Gabba, ये Gabba में थे. I mean, the wicket looked much better, different than Perth. Yeah. Bounce was there, but it was nice bounce. बल्ले पे गेंद आ रहा था वहाँ पे. I think इन्होंने एक तो स्कोर कम किया, विकेटें गिराते गए, but उसके बाद when they came out to bat, Zim, yeah, and that was a different story. जो लास्ट बॉल पे ड्रामा हुआ, उसके बाद शेन विलियम्स ने 64 किया, सेकंड हाईएस्ट इज 27, रायन बर्ल, but in the end it was a good win for Bangladesh. Yeah, that is. It was definitely a good win for Bangladesh. And Tashkent Ahmed, I think he's great heroics by Tashkent Waqar today. Yeah, he's improving. You know, day by day, he's getting better and better. I think इसका दूसरा तीसरा मैन ऑफ द मैच है. ऊपर से ब्रेक थ्रू देता है, नया बॉल बड़ी अच्छी जगह पे करना शुरू कर दिया इसने. He used to be very wayward at times पहले, लेकिन he's learning the art, or he enjoys the bounce here in Australia. You know, great talent. ये वसीम आज ना इस मैच में बॉल इतना टर्न नहीं हुआ जितना मैच खुद टर्न हुआ है बार-बार. Yeah, it was a game of the day, I reckon. Although India का मैच भी अच्छा हुआ. Yes. But this was you know, क्या कहते हैं, humdinger. All right, the way forward. What should be the way forward for Zimbabwe from this point onward? Sorry. Why are you laughing at me? I don't know. Yeah, I thought he was laughing. Way forward उनके लिए ये है कि वो basically पहले उन्होंने होबार्ट में मैच खेला, फिर उन्होंने पर्थ खेला, फिर अब उन्होंने ब्रिस्बेन खेला. अगली उनकी फ्लाइट पता कर ले तो that's the only way forward I can think. All right, Shoaib Malik, quickly bringing this to you. You know, it's that part of the show where we have to take a break. Okay. Good. All right. Let's we go. We all need a break. So do you all. See you all other side of the break. Cool. कहना दे तुझे यही थी. See you all other side of the break. ये बात. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं A Sports and 10 Sports, our coverage of the ICC Men's T20 World Cup. With me in the studio, legends, I've got Shoaib Malik, Misbah Waqar, Younis, Wasim, Akram, and it's time for your questions on Ask the Pavilion. इसका बाकायदगी से आगाज़ करते हैं Ask the Pavilion. बहुत सारे आज सवालात आए हुए हैं, but we're going to try to go through this. पहला सवाल जुनेर एजाज की तरफ से. वसीम, ये आपके लिए उन्होंने सवाल भेजा है कि आपने 10 साल लैंकाशायर के लिए खेला. You played for Lancashire for 10 years. What is the one thing that is missing in Pakistani domestic cricket that you found in county cricket?
किनका क्वेश्चन था? जुनेर इजाज. जुनेर इजाज. Yeah, it was long time ago, but chalk and cheese का difference. I remember जब मैं पहली दफ़ा गया, मैं था भी 20 साल का, एक तो पता भी नहीं था मैंने ठहरना कहाँ है, कुछ क्या है. They looked after me. मैं गया हूँ होटल में, उन्होंने मुझे रूम दिया. मेरी वहाँ पूरी किट पड़ी हुई थी, पूरे साल की किट बैग पड़ा हुआ था. मेरी गाड़ी, हालांकि लाइसेंस नहीं था मेरे पास, इंटरनेशनल लाइसेंस था. जो गाड़ी स्पॉन्सर थी वॉल्वो बूढ़ो वाली थी, ब्रांड न्यू थी, मेरे लिए वॉज अ बिग डील. वो खड़ी थी. देन नेक्स्ट मुझे बताया प्रैक्टिस है शाम को सर्टेन टाइम. आई वेंट देयर, वॉक था ग्राउंड से ओल्ड ट्रैफर्ड से. कैप्टन वगैरह मिले सारे. दे वर ऑल लुकिंग आफ्टर मी, लाइक दे मेड श्योर दैट आई. और उनका जो सिस्टम था, उसकी बात कर रहे हैं, उनका सिस्टम था, एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड. किसी चीज़ को वो क्रिकेट, अगर मैंने एक नया बॉल मुझे चाहिए 6, वो नए 6 के 6 नए बॉल मुझे दे देते थे. फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, आई डोंट हैव टू गो टू 7 पीपल कि ये कर दो. ये एक बंदे को कहता था मुझे ये चाहिए, वो मुझे ये करना है. ही वाज डन देयर एंड देन. नॉट जस्ट मी, ऑल द प्लेयर्स. प्रैक्टिस करनी है इकट्ठे, मिडल में प्रैक्टिस करनी है, वट एवर, एवरीथिंग वाज अवेलेबल. देयर वाज नो, मैंने ना का लफ्ज़ नहीं सुना वहाँ से. वो 10 साल में खेला. सबसे जो बड़ा डिफरेंस जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि वो आपके पास आते थे. दे यूज्ड टू कम टू यू एंड आस्क चौधरी नहीं सन बंदे. They used to come to you and ask you, okay, what do you need? Anything we can do for you? And then you feel like working for them, you know? I remember first time they gave me crockery. हालांकि जरूरत नहीं, क्रॉकरी, वो नाइफ्स एंड फोक्स, मुझे पता नहीं था घर में ये भी चीज़ें रखते हैं. मैं बिग बैश खेलने गया तो मेरे पास कपड़े धोने वाली मशीन थी, सुखाने वाली नहीं थी. वहाँ आपको अपार्टमेंट देते हैं अगर आप बिग बैश खेलने जाएं. तो मेरा जो होम था वो था होबार्ट. तो वहाँ ना हमारा CEO ऑफ द क्लब, उसने ना गाड़ी में ना वो जा रहा था, तो मैं अपने अपार्टमेंट से निकला, टोकरी मैंने पकड़ी हुई थी, मैं सामने मशीन थी, वो $1-2 डालें और कपड़े डालें, वो सुखाने वाली. मैं टोकरी लेके वहाँ जा रहा था, उसने मुझे देखा है, एक कपड़ों वाली टोकरी लेके जा रहा है. तो अगले दिन मैंने नहीं कहा उनको, अगले दिन मेरे अपार्टमेंट में सुखाने वाली मशीन भी लगी हुई थी. मैं प्रैक्टिस पे था, मैंने आगे देखा, मैंने कहा आई एम सॉरी, वो ये कंपैरिजन हो ही नहीं सकता. कपड़े सूख गए. थोड़ा टाइम लग गया. आई थॉट वो देखे क्या कह रहा है कि कह रहे तेरे कपड़े सूख गए. मेरे माइंड छोटे सन ऐना दी तरह ना केरा नहीं दी बड़ा. नहीं, आई थॉट उसने देख के आना यार मेरा पच्छा भी ले जा नाल. कपड़े तो आगे ले. दैट्स ट्रू. M.A. ब्रोही का सवाल है आज द पवेलियन में. M.A. ब्रोही पूछ रहे हैं, स्टोरी रिक्वेस्ट फॉर द 2 Ws. I've heard in various interviews that Saeed Anwar was a great prankster on the Pakistan squad. Can you please share a story or two of his pranks? This is for the 2 Ws. Saeed Anwar was actually one of the funniest cricketer, human being I know. अब सेंस ऑफ ह्यूमर उसकी बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी मुनासिब सेंस ऑफ ह्यूमर थी. इट वॉजंट बिलो द बेल्ट और चीप. ही वॉज रियली गुड. उसने 2 दफ़ा मेरे साथ किया है. जब आप जवान होते हो, नीचे से अगर आप होटल, उस मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, अगर आप कमरे में किसी लड़की का फ़ोन आ जाए कि मैं नीचे मिलने आई हूँ, सो व्हाट वुड यू डू एज अ 22-year-old 25-year-old? भाग के जाओगे भाग के जाओगे नीचे. 2 दफ़ा मैं अपनी गलती थी. नहीं, इसके साथ भी किया, उससे बड़ों के साथ किया हुआ. आवाज़ बदल के वो कमरे में कॉल करता था, फिर कहता था मैं आपसे मिलने आई हूँ, मैं आपकी फ़ैन हूँ, वो भी अंग्रेजी एक्सेंट के साथ. तो हम फिर मैं भागा नीचे, कभी बाहर देख रहा हूँ, कभी लिफ्ट में देख रहा हूँ. करके बताएं किस एक्सेंट के साथ है? किस एक्सेंट के साथ थोड़ा करके दस दो. सईद का वो सईद ही बता सकता है, आई सपोज. एंड देन आई यूज्ड टू रन डाउन. ट्वाइस इट हैपेंड, देन आई गॉट टू फाइंड आउट इट वाज सईद अनवर एंड आई जस्ट थ्रू अ फिट. सारे मूड की सत्यानाश मार दिया यार इन जनरल. That's a great memory too. That's a definitely great memory to have. All right जनाब, आज सब पवेलियन अगला सवाल हमारे पास आया है मिसबाहुल हक आपके लिए. ये सवाल किया है शफकत ने. शफकत टोर्नेडो इनका नाम, शफकत टोर्नेडो. शफकत टोर्नेडो पूछ रहे हैं कि प्लीज माय क्वेश्चन टू मिसबाहुल हक, कैन समबडी हु प्लेज टेप बॉल क्रिकेट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, कैन दे एक्चुअली मेक इट बिग इन इंटरनेशनल क्रिकेट? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं. मैंने भी टेप बॉल से शुरू किया और मैंने बताया भी था कि कॉलेज के बाद जाके FSC के बाद मैंने क्रिकेट बॉल खेलना शुरू की. हफीज़ की एग्जांपल है आपके सामने. नवीद लतीफ़ यूज्ड टू प्ले टेप बॉल. अब्दुल रज़ाक बिग एग्जांपल. सोहेल तनवीर, सो मेनी क्रिकेटर्स. आई थिंक बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन भी हैं. हारिस सोहेल भी आई थिंक खेलता था. हारिस रऊफ. बॉलर्स को फिर भी मेरे ख्याल में ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को. वो ज़्यादा तेज़ बॉलिंग भी करते हैं इसमें.
बैट्समैनों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बैट्समैनों की भी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। मोस्टली पाकिस्तान में वो टेप बॉल क्रिकेट खेलते हुए आए। पावर हिटिंग के लिए अच्छा है अगर बैट्समैन भी खेलते हैं टेप बॉल, तो लेकिन एक तरफ ना खेलें बस, ओके इधर ऑन साइड की तरफ। राइट, ये जनाब अगला सवाल वकार यूनिस सर, हु इज योर फेवरेट बैटर एंड बॉलर फ्रॉम द T20 वर्ल्ड कप 2022, इस वाले वर्ल्ड कप से? ये सवाल आपसे किया है समर ने। समर इज इमरान खान 806 ऑन ट्विटर। समर का सवाल है वकार यूनिस आपके लिए। बैट्समैन एंड बॉलर, अभी तो खैर वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो आई विल प्रोबेबली लुक इनटू इट बिट मोर। आई थिंक सूर्य कुमार यादव, आई थिंक ही इज प्रोबेबली समथिंग वेरी वेरी फ्रेश एंड वेरी न्यू और अमेजिंग बैट्समैन, आई थिंक T20 का स्पेशली। और बॉलर में व्हाट आई रियली enjoyed is Nokia. Okay. Nokia, I think he is just something very very special. Haris also, Haris Rauf is bowling really well. So I think there are so many. It's just difficult to pick one. I'll stay with you, Waqar. This next question is from Dr. Y UK. Dr. Y in UK for Waqar. How much special nutritional input do the Pakistani team have access to? We still see players eating carb-rich food at major tournaments, whether it's burgers, biryani or fried chicken. Other teams, for example, India, seem to have a more knowledge and discipline in this regard in their menu selection. Is it cultural or lack of education? Because you were head coach, and I think Misbah, you can also quote it. Yeah, please. Beta, both I think is cultural and educational also. दोनों issues हैं, mix है. आप जितना मर्जी आप लगा लें, एक कल्चरल चीज़ तो है ना कि हमारा जो खाना है वो इट्स रिच and people love it. Misbah has worked really hard on अभी ये पिछले 2 सालों में, but it is very hard to control. You know, सब लड़के तो अपना जब कमरों में चले गए तो who knows what he is eating. इंडिविजुअल पे डिपेंड तो करता है ना यार। शोएब मलिक भी तो है ना, जनरली और भी फिट लड़के वो फिर आ जाती है फिर इंडिविजुअल पे कि आप इंडिविजुअली how badly you want to play cricket and how badly or how hungry you are for cricket. So then आप हम इसके सामने खाते हैं ना, हर रोज खाते हैं, आप तो हर चीज़ ही मंगा लेते हैं ना, तो he doesn't touch. मसूद है पाकिस्तान टीम में, he is very disciplined in terms of he knows as well. मैंने भी पिछले साल देखी थी फर्स्ट क्लास का T20 टूर्नामेंट हो रहा था, तो 4 हमारे टॉप प्लेयर पाकिस्तान टीम के फोटो आ रहे थे, पीछे पूरा बकरा पे आया है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। वसीम भाई हम लोग भी क्रिकेट खेले हैं, मुझे खाने का इतना इशू नहीं है। खाना हम लोग भी यूज्ड टू ईट एवरीथिंग एंड यू नो यूज्ड टू गो आउट एंड ईट रियली गुड फूड एंड ऑल दैट। इशू ये है कि अगर आप खाएं, मिसबा भी खाता है, मिसबा इज अ गुड ईटर, बट ही वर्क आउट, यू मेक श्योर देन कि आपको जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आप इतना तगड़ा हो कि आप वो फिर जो आपने खाया है you should be able to burn that. Okay. Dr. Y in UK again, एक और सवाल है, but ये वसीम आपके लिए, and reason I'm bringing it because ये बड़ा pertinent से सवाल था डाइट के हवाले से और सारी उसकी चीजें। ये सवाल उन्होंने आपसे किया है कि for Wasim Akram, how did you manage the diabetes effect on your level of play and longevity in the game? How did you manage it? How did you deal with it? I know you've said this earlier as well, but I think there's always new people who should listen to कि diabetes के साथ किस तरह आपने cope किया और international cricket खेली. Please. Look, it was tough in the beginning, no doubt, because I got diagnosed in '97 when I was 29, top of my game, one of the fittest sportsmen in world cricket, and it happened. It took me a year and a half to get to know. Credit to my late wife Homa, जिसने मुझे उस पे किताबें ला के दी। The doctors थे उस दौरान जिन्होंने बताया कि my first question was, will I be able to play cricket? That was because I didn't know anything about diabetes then. Right. बट एक साल लगा मुझे, फ्लक्चुएशन आती थी ब्लड शुगर में, कभी ये भी पता लगा कि शुगर लेवल आपका लो भी हो जाता है। फिर टीम को भी बताया, टीम ने भी फिर हेल्प की, फिर चॉकलेट कैरी करते थे। टेस्ट मैचेस में फिर मैंने खुद सीखा कि अगर लंच का टाइम है तो मैंने इंसुलिन कम लगानी है, बल्कि नहीं लगानी, बिकॉज कई दफ़ा लगा के मैं खाना खा के चला गया तो लंच में भूख कम लगती है जनरली इफ़ यू आर बोलिंग, तो मेरा शुगर लेवल सडनली लो हो जाता था। Then I used to come out, have something to eat, wait for 5 minutes, then go out. So eventually I realized, obviously डॉक्टर की बात तो सुननी है, आपने खुद भी इस डायबिटीज़ में खुद भी आपने शुगर लेवल चेक करते रहने हैं। और पाकिस्तान में मैं बता चुका हूँ, अनफॉर्चुनेट है कि हम दुनिया के 3रे नंबर पे आ गए हैं। We are 34 million people are known diabetics now. We're third in the world. We're the third in the world. That's got to do with food and lifestyle. Yeah. Absolutely.
You're welcome, Fakhr. मेरा ख्याल है अब बिल्कुल ही खामोश हो जाएं। ब्रेक पे चलें, फौरन से पहले ब्रेक पे चलें, आप लोग। पूरी से सब ब्रेक पे चलें। You're watching the Pavilion, we'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. With me, I've got Shoaib Malik, Misbahul Haq, Waqar, Younis, Wasim, Akram और Ask the Pavilion. आपके सवालात का सिलसिला जारी है। अगला सवाल जो है ये आया है जनाब उस्मान आजम से और ये है कि क्वेश्चन फॉर ऑल द क्रिकेटर्स on why there is no Pakistani in the committee of ICC. I don't know what that means, but Wasim? इनका मतलब आजम साहब का मतलब है कि पाकिस्तान आईसीसी क्रिकेट कमेटी में पाकिस्तानी कोई प्लेयर क्यों नहीं, एक्स प्लेयर। मेरा नहीं ख्याल लास्ट रमीज होगा लॉन्ग टाइम अगो। आई थिंक यूजुअली टीम टेस्ट कैप्टन्स और टीम कैप्टन्स ऑफ द कंट्री दे नॉमिनेट रैप्स फ्रॉम देयर कंट्री। दैट्स 100%। Right. So who has been nominated? Nominated Pakistan से anybody? That I don't know. We don't know that. We'll try to find out. हम इसका आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे कि if there is anybody nominated या इसका क्या सिलसिला होता है. We'll get back to you on that one. मुझे तो आज तक किसी ने नहीं पूछा to be on a committee, even PCB or any captain. I don't know. जब आप कप्तान थे तो क्या था? अब ये आप है कि टेस्ट कैप्टन nominate raps from their own country. Each test captain. ये कब से ये रूल आया है? ये exactly मुझे नहीं पता, but we'll try to get more details on this. I think let's have more clarity before we give that answer out. Suhail Asghar का सवाल है आपसे Shoaib Malik. This is for you, Shoaib Malik. Please share your diet plan with us and your exercise regime quickly. लंबा छोड़ा ना दसी, छोटा ऊंची कम है। देखिए मेरी लाइफ में शुगर इनटेक 0 है और पहले मैं चाय में पी लेता था, वो भी ख़त्म। उससे एडवांटेज मुझे ये हुआ है कि जो लेथार्जिकनेस थी ना मुझे फील होती थी अक्सर शाम के टाइम पे, वो बिल्कुल नहीं है। शुगर इनटेक इज 0। यहाँ इस मुल्क में चीनी की किल्लत हो जाए तो अद्धे बंदे उंजी मर जाते हैं। 6 चमचे चीनी। लेकिन उसका बहुत एडवांटेज है अगर आपकी शुगर इनटेक 0 हो जाए। Why are you picking on Fakhr? No, I don't take sugar by the way in my. You know that. I don't take any sugar in my tea. मुझे आप लोगों ने कहा छोटा रखना। You know I take no sugar in my tea. I don't know why you're pointing this on me. You always pick on him, huh? Always. हलवा पूरी Why you pick on him? प्लेटें खा रहे थे। हलवा खा गया किलो। शुगर नहीं खाते। शुगर देखो यार चीनी की बात तली हुई चीज़- हलवे की बात नहीं हुई थी। तली चीनी हुई की बात चीज आप ना खाएं यार उसके जलसे पे क्यों पथराव कर रहे हो? जवाब देने दो उसको प्लीज। मुझे आप लोगों ने कहा छोटा रखना। No, we need to people need firing to शुरू know. हो गई। Explain it to them, a young generation. देखिए शुगर इनटेक 0 है, उसके बहुत एडवांटेजेस हैं। अगर मैंने आज मैच खेला है और मेरी शुगर इनटेक 0 है तो मेरी रिकवरी फास्टर है। मुझे मतलब मसल्स जो है मेरे वो नहीं होते, टाइट नहीं होते, अगले दिन स्टिफनेस नहीं महसूस होती। दूसरा तली हुई चीज़ और ये जो है क्या उसे कहते हैं मतलब फास्ट फूड, ये बिल्कुल 0 है मेरा। हाँ मैं खेल रहा हूँ तो कार्ब्स ले लेता हूँ। कार्ब्स में जो है जैसे वाइट राइस हो गया, स्टीम राइस, उसमें मैश पोटैटो हो गया, उसमें स्वीट पोटैटो हो गया। थोड़ा मुश्किल होती है ये ढूंढने में चीज़ें, लेकिन अगर कुछ आपको अचीव करना है तो ये आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कहता कि आप रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दो, आप खाओ, लेकिन कोशिश करो दोपहर में खा लो, रात में ना खाओ जाके। फखर तो भुक्खा मार जाएगा। मेरे टेंशन होगी गल्ला सारी से, मैंने टेंशन में चला गया उसकी सारी बातें सुन के। शुरू में बहुत फ्रस्ट्रेशन आती थी, लेकिन जब एक दफ़ा रूटीन बनी ना तो ये मैंने कहा यार ये मैंने 10 साल पहले क्यों नहीं किया। चलो यार, I'm going on your diet from tomorrow morning. मैंने आज आखिरी शो है। कल अगर मैं थोड़ा लेथार्जिक हुआ तो इसका मतलब अक्सूर है। अच्छा चलो जी, राइट। सैयद शफीक उल हक का सवाल आया वसीम, एंड दिस इज फॉर यू। इट्स अ बिट ऑफ अ सेंसिटिव सब्जेक्ट। एवर सिंस यस्टरडे आपकी एक न्यूज़ ब्रेक हुई आपकी किताब के हवाले से वसीम। सो हियर इज द क्वेश्चन, आई विल जस्ट पुट दिस आउट टू यू स्ट्रेट आउट। दिस इज सैयद शफीक उल हक, आस्क द पेविलियन। हाय वसीम, आई जस्ट रेड अबाउट योर पार्ट ऑफ लाइफ व्हेन यू गॉट एडिक्टेड टू ड्रग्स. I myself got carried away during my student life in UK too, and sometimes I still regret that too much party and drugs, for the too much party and drugs. Please tell young guys watching and admiring you how bad it really can get. This is from Sayyid Shafiqul Haq. Yeah, it was a horrible time. I know it came out, I've been trending, people have been calling me, but the idea was like when I got diagnosed as a diabetic 24 years ago, and I wanted to come out with it as well. And this is the culture I talk about. I've been told by a lot of people
not to ये ना बताओ कि मैं क्या हो जाएगा ज़्यादा मैं बताऊँगा मैं डायबिटिक हूँ कि नहीं वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा और कुछ नहीं हुआ. Idea was to motivate all the diabetics. If I can look after myself, so can they, especially worldwide, worldwide. और दूसरा जो मैंने बुक में जिक्र किया अपनी उस एडिक्शन का, that happened just retirement के साल 2 बाद, when future का पता नहीं था करना क्या है. Didn't know, I wasn't a businessman, I wasn't an Indian cricketer कि मेरे पास ठीक ठाक पैसे पड़े हुए हैं तो मैं रिलैक्स करके चिल कर सकता हूँ. So I was worried about the future. Then company also matters. Company matters a lot. ये नहीं कि किसी ने ज़बरदस्ती मुझे दी है. I'm not blaming anyone. If I have to blame someone, it's just me. Right. And in that process, I've hurt a lot of people, including my wife, maybe my dad, who found out he had a shock. So the idea was coming out with this in my book was to again motivate people when they go through some situation like this, some ऐसी बुरी तरीके से या बुरे हालात से गुजरते हैं. If I can make a comeback, you can too. So be your own hero. Yeah. Don't listen to people. Culture की बात है, culture को अच्छा करना है हमने. Okay, so Wasim, I'm going to ask you this. It's very brave of you. So I'm receiving a lot of messages as well. और वो ट्विटर पे भी जो मैंने पोस्ट किया था ये आर्टिकल कल इस पे भी और बहुत सारे लोगों ने कहा कि it's very brave of you. You're truly a legend that you take something on this and express this, especially जब पाकिस्तान में मुझे इसमें भी डराया गया जी था कि बड़ा टैबू होता है इसमें. टैबू है, स्पॉन्सर भाग जाएंगे. But how difficult is it for you to say this, share this, when you yourself have grown up kids? How difficult or how much of a weight is I it? first told my kids. Right. One is Taimur is 25, Akbar is 21. Obviously, Shanira I spoke to before. But again, if you talk about hair, in our culture, I've been told not to mention it. So again, यही तो taboo मैंने इस culture में change करना है कि problem है तो बता दो. अगर आप किसी को motivate, एक बंदे को मैं motivate कर दूंगा, तो my job is done. Yeah. Also, I think that nobody wants to talk about is that there is a serious drug problem in Pakistani society. ये एक एक्चुअल हकीकत है. मनशियात का जो ये लत है ये एक बहुत बड़ी हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है और इसके ऊपर लोग बात करना नहीं चाहते. आप जिस लेवल पे भी चले जाएं माशरे के गरीब तबके से लेके अमीर तरीन तबके तक यहाँ पर आपको बहुत जगहों पे ये बात बार बार देखने को मिलेगी. So I think it is very important that we start having that conversation, not just with our families and our children, but amongst ourselves, and most importantly, as Wasim is trying to point out, with our own selves. That's the most important thing. This is the only way we can improve society. I'm sorry, I didn't mean to make you emotional. I know, it is very tough. And with that, we have another day of cricket tomorrow at the ICC Men's T20 World Cup in Australia. और वो सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि कल का मैच आपकी खिदमत में ये है. कल एक मैच होगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. ये मैच बहुत ज़बरदस्त मैच होगा चूँकि ये ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का मैच है. आयरलैंड ने ऑलरेडी इंग्लैंड को जो है वो एक झटका दिया हुआ है. क्या कल आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकती है? इसको जानने के लिए देखते रहिए Sports and 10 Sports. Tomorrow at 1 o'clock we will be here. I think what time will be coming here? 11:30. 11:30? You're welcome. सिर्फ 2 मॉर्निंग लोग बता सकते हैं. 11:30 बजे. We'll be right back here at 11:30 a.m. tomorrow morning. And with that, we thank you all for being here. Thank you, Shoaib. Thank you, Waqar. Thank you, Misbah. And most of all, Wasim. Thank you very much for being so brutally honest in the most difficult times. And that's what we all need to do. Be honest, not just about ourselves, our cricket, our country, our society, but everything. And with that, on that note, we say good night. We'll see you tomorrow morning at 11:30 a.m. Till then, take care of yourselves.